Good afternoon, everyone. This is Anshu Kumar, your host for today's event. So, starting with it, I would like to welcome the founder of Skillark, Vinay Singh sir, and everyone who is the part of this event. Now, I would like to give a brief introduction about Skillark. In Skillark, we have industrial experts as who have as expert as teachers and mentors who have immense knowledge in their fields. The main concern this company focuses about is educating people through online platforms. Now, I would like to call Vatsal sir, who will tell you about Skillark and how it is different from other online teaching platforms. Thanks, Anshul, for giving me this opportunity. So, friends, first of all, I would like to welcome you all in today's workshop and congratulate you all for stepping ahead towards a bright career. The Skillark is conducting this workshop with the aim to provide you a good quality content and to give you a trailer of a film which will be started in their online courses. These workshops have a certain perks and benefits because we always work for you. So for all the top 3 scorers of each day, there will be a direct internship. These 3 scorers actually will be coming out from the quiz that will be conducted at the end of session. And the cumulative top 3 scorers of all 5-day assessments. As you know all that Skillark is conducting a workshop of 5 days, and today we are standing in the 4th day. So all the cumulative high scorers of all the 5 days will actually get a goodies from the Skillark that will be delivered to your home directly, and each participant will get a certificate of participation. Talking about the Skillark is actually a edtech company which is started with a vision to provide you great quality content prepared by the industry experts. If I talk about Skillark's feature precisely, Skillark basically works on a concept to provide you a rich content firstly, and secondly they have a really good concept of career counseling. This career counseling is actually for those who are not clear about their visions or a career path. Talking precisely about myself, I was among the one who was not so clear about which career path to pursue, and I actually not have a real guidance to anyone to tell me that which career path is actually going to the future. बट आपके लिए Skillark एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया जहाँ पे आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ चैट कर सकते हो, एंड यू कैन हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड यू कैन हैव रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग योर करियर, और आप सही करियर पाथ में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अहेड बढ़ सकते हो. तीसरी चीज़ जो मुझे Skillark के बारे में काफ़ी अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आ रहे हैं. तो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है. क्लासेस में भी थ्योरी के साथ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, प्लस आपको आप वर्कशॉप्स में भी देख रहे होंगे कि आपको जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिया जा रहा है. यहाँ पे जो कोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड वे में बनाए जाते हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद ये डेटा आप तक पहुँचाया जाता है. सर प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए. सॉरी फ्रेंड्स, अब तक ये स्क्रीन आप पे थी नहीं तो मैं आपको बता दूँ. आई विल जस्ट रीडिंग आउट द कंटेंट. ये सब कुछ है जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि Skillark जो है वो एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि वर्क करता है फॉर डिफाइनिंग योर करियर्स. और Skillark की सबसे एक फर्म बिलीव है कि हम लोग जो भी प्रोवाइड करेंगे वो एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपके लिए आपके आने वाले करियर में कहीं ना कहीं इट स्टैंड विद हेड विद यू. एक अपराइट सपोर्ट आपके साथ Skillark है आपका, जो आपको करियर पाथ में आपके हमेशा आपके साथ रहेगा. और ये केवल स्कूल या फिर ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि Skillark का विजन स्कूल और पोस्ट स्कूल दोनों के लिए है. और Skillark की सबसे खास बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है Skillark के बारे में, वो ये है कि Skillark आपको जो गाइडेंस दे रहा है वो कोर्स से पहले इन द फॉर्म ऑफ करियर काउंसलिंग. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ Skillark आपके साथ है ही है, प्लस जब आप कोर्स कंप्लीट कर देते हो तब भी Skillark आपको सपोर्ट दे रहा है बाय गिविंग यू द रिच कंटेंट ऑफ आपको एक अच्छी नॉलेज देगा रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट जो आप बना सकते हो. उसके अलावा भी आपको काफ़ी गाइडेंस देगा कि आप किस तरह से कंपनीज को अप्रोच करके अपनी ड्रीम जॉब को लैंड कर सकते हो. तो Skillark इज नॉट जस्ट प्रायर ड्यूरिंग द कोर्स, बट इट इज अ हेल्पिंग हैंड बिफोर यू एंटर इन द कोर्स प्लस आफ्टर यू कंप्लीट योर कोर्स. तो एक पूरा एंड टू एंड हेल्पिंग हैंड है. इट इज जस्ट लाइक योर बैकबोन. It is just like a step through which you can step up and achieve your goals.
अगर मैं बात बताऊं कि आज का सेशन जो है ना फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर आप अपने अराउंड देखोगे आपको हर चीज़ मिलती है कहाँ पे, गूगल पे। सॉरी, हर चीज़ आपको गूगल में मिल रही है, हर चीज़ आपको क्लाउड में मिलती है। इंडस्ट्री जहाँ पे जिसके लिए हम लोग तैयार हो ना, वो इंडस्ट्री आजकल चली गई है 4.0 पे। 4.0 का मतलब क्या है कि सब चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है क्लाउड के थ्रू। क्लाउड क्या है? क्लाउड एक सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से हमारी कंट्रोलिंग हो रही है। और अगर आपको एक अच्छा करियर चाहिए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए क्लाउड के बारे में। और इसी को ध्यान में रखते हुए, एंड क्लाउड बीइंग वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हम आपके लिए आज क्लाउड की एक वर्कशॉप लेके आए हैं बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर सिद्धांत कपूर सर, हु इज अ एज्योर डेटा इंजीनियर एट इन्फोसिस. He is a 3-time Microsoft certified professional, and as you know that data is everything. And let's give this mic to Siddhant sir. Siddhant sir, I welcome you, and please come and take the platform. Thank you Vasu, thank you for a very good intro. And तुमने मेरा नाम नहीं मिस करा, बहुत लोग सिद्धार्थ भी बोल देते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू. सब लोग कैसे हैं वैसे, कैसे चल रहा है सब लोग, बताओ पहले तो. How is everyone doing? अभी तक स्किलार्क में कैसा लगा आप लोगों को? जल्दी जल्दी चैट में बताओ. मजा आ रही है? गुड गुड, अच्छा है. ऐसे ही इंटरेक्शन बनाए रखना, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. मैं तुम लोगों को पहले बताता हूँ मेरे बारे में थोड़ा. मैं इन्फोसिस में हूँ पिछले 1.5 साल से, ठीक है. आई होप everyone is okay with हिंदी, if I interact with हिंदी, because इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत इंग्लिश बोल ली है. एंड आई वुड लव कि अगर मैं स्टूडेंट के साथ हूँ या कोई मेरे साथ सीखना चाह रहा है इस चीज को और आगे, क्योंकि मैं भी अभी एक बहुत लर्नर ही हूँ, एक्सपर्ट हूँ, बट एवरीथिंग इज स्टिल इन अ लर्निंग स्टेज, ठीक है. तो सब लोग खुश है ना अगर मैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके. कोई ऐसा है जिसको होगी तो जरूर बताना, ठीक है. ओके, ठीक है. तो देखो यार, बेसिकली मेरा काम जो है इन्फोसिस में है, मेरा खुद का एक क्लाइंट है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है. मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ डायरेक्टली काम कर रहा हूँ इस समय, ठीक है. हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, जैसे कि आउटलुक हो गया, सबको पता होगा आउटलुक क्या है, ठीक है. अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन लाया है, तो उसके पीछे का एक कस्टमर सपोर्ट डेटा होता है, ठीक है. तो जो कस्टमर सपोर्ट डेटा होता है, जैसे कि तुमने कोई इश्यू रेज करा तो मैं उसके लिए काम करता हूँ, इसके पीछे की फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में मेरे को पास जो भी प्रेजेंट डेटा है वो फ्यूचर में मुझे क्या देगा, ठीक है. तो ये बहुत थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, अभी हम उसमें डीप नहीं जाएंगे, बस अपने बारे में बता रहा था, ठीक है. चलो आज का कोर्स शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि किसको किसको पता है कि ये 3 टर्म्स क्या है. अगर किसी को पता है तो वो चैट में बता सकते हैं कि हाँ सर हमें पता है ये 3 टर्म्स क्या है. ओके गुड. और कोई मुझे ये बता सकता है कि कल जैसे कि अनुग्रह ने आप लोग को पढ़ाया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग, आज मैं उसका एक पार्ट उठाया हूँ, उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो सबको पता ही होगी कि हमारा जैसे कोई ऑन प्रेमाइज चीज है, भाई बहुत खर्चा हो रहा है, लाइक बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा. हाँ वेरी गुड आयुष, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, गुड. आईपीएस, आई कॉल इट आईपीएस, आईएएस, पीएएस, एसएएस, ठीक है. गुड गुड आयुष. तो जैसे कि आयुष ने आप लोग को पहले ही समझा दिया है कि 2 चीजों का नाम उसने पहले बता दिया है कि आईएएस इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पीएएस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड एसएएस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है. तो मैं तुम लोग को पहले बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे सबको पता है, कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है. मतलब बहुत सिंपल सी चीज है. जैसे तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ रहा है, तुम थक चुके हो, यार मैं हर चीज नहीं कर सकता, अब मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, मुझे थोड़ा एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां मैं थोड़ा सा रेंट दूं और मुझे वो जगह मिल जाए जहां मैं अपना सब कुछ लॉन्च कर सकूं, सब चला सकूं, सब कुछ कर सकूं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली वही काम करता है तुम्हारे लिए. तुम्हें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे तुम अपने लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हो, अपना पूरा पूरा सॉफ्टवेयर उस पर चला सकते हो, ठीक है. ये चीज होती है. आई गेस सबको समझ में आ रहा है. अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पुटअप कर सकता है कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आप थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं, तो वो क्यों यूज करा जाता है. किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, कोई इश्यू नहीं है मेरे को.
अगर तो सब लोग को क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसा सब लोग बताएं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो पूजा ने बोला है कि इसको एक बार और समझाना है। तो देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा। मान के चलो कि तुम एक बिजनेस चलाते हो, ठीक है, एक बिजनेस चलाते हो, उसमें बहुत सारा डेटा फ्लो करता है, तुम्हारे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे खुद की बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है। अब मान के चलो तुम्हें वो बहुत महंगा पड़ता है, वो खराब हो जाता है, तुम्हें मेंटेनेंस करनी पड़ती है, हर चीज का तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ता है, तुम्हें कोई हेल्प करने वाला नहीं है। किसी ने वेंडर टर्म का नाम सुना है? वेंडर, वेंडर समझते हो क्या होता है? जल्दी से कोई चार्ट बताओ, वेंडर क्या होता है? गुड गुड आयुष, प्रोवाइडर। देखो, वेंडर एक ऐसा इंसान होता है या कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि तुम इसे थोड़ा पैसा दो और वो तुम्हारा काम करेगा, ठीक है। वो काम का तुम्हें अब ईज हो गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग यही काम करता है तुम्हारे लिए। वो बेसिकली एक वेंडर की तरह होता है, जैसे कोई भी एक प्लेटफॉर्म हो गया, कोई भी इंफ्रा हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, वो एक वेंडर की तरह काम करता है। तुम्हें बस अपनी सर्विस उठा के वहां डालनी होती है और सब कुछ वो तुम्हें फेच करके देता है। तुम्हें कुछ मेंटेन नहीं करना होता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता है। एक टाइम ऐसा भी होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्विसेज है, जिसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। गुड गुड गुड, सही सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, गुड आंसर। चलो अब हम शुरू करते हैं आईएएस से, ठीक है। तो आईएएस गिव्स यूजर्स क्लाउड बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स premise infrastructure so business can invest in expensive on-site resources, ठीक है। तो मतलब मैं तुम्हें एक सिंपल सी वो चीज लिखी है, कैन अवॉइड इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंसिव ऑन-साइट रिसोर्सेज। सिंपल सी बात बताता हूँ। मान के चलो तुम्हारा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, मतलब जैसे कि तुम्हें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ रहा है या तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो वहां पर IaaS काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जैसे कि तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे कि अगर तुम एक पिज्जा बनाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को एक सिंपल सा एक सिनेरियो समझाता हूँ। तुम एक पिज्जा बनाते हो, ठीक है, जैसे पिज्जा बनाते हो, तो पिज्जा बनाने के लिए तुम्हें पिज्जा बना के सर्व करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा? तुम्हें चीज चाहिए होगा, तुम्हें टॉपिंग चाहिए होंगी, तुम्हें सॉस, पिज्जा डो मतलब जिससे बेस बनता है, पिज्जा डो चाहिए होगा, आग चाहिए होगी, अवन चाहिए होगा, और थोड़ी सी गैस चाहिए होगी, और थोड़ा सोडा, डाइनिंग डाइनिंग टेबल, मतलब सब कुछ मिक्सचर, बहुत कुछ चाहिए होगा तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें ये सब कुछ खुद ही लाना है, सब कुछ खुद ही करना है। तो ये बेसिकली हो गया तुम्हारा जो तुम्हारे ऑन प्रेमाइस है। ऑन प्रेमाइस मतलब जैसे तुम्हें घर पे ही सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कोई वेंडर नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अगर अब मैं तुम्हें कहूं कि मैं एक बेकरी हूं जो तुम्हें चीज दे सकेगी, तुम्हें टॉपिंग्स देगी, तुम्हें टोमेटो सॉस देगी और तुम्हें पिज्जा डो देगी, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वो सामान लेना है, जाना और बेक करके बना देना है, ठीक है। ये हो गया, मैं तुम्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें एक जरिया दे रहा हूँ कि तुम आओ भाई, तुम्हें मैंने पूरा बेस तैयार करके दिया है, अब तुम इस पे कुछ भी बना सकते हो आगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एक तरीके से, ठीक है। पर अगर किसी को ना समझ में आ रहा तो मैं और इजीली समझा सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। एक सेकंड रुकना, तो मेरी चैट थोड़ा डिसेबल हो गई थी, 2 मिनट देना, मैं देख नहीं पा रहा एक्चुअली। The recording has started. The host has muted the conference. ओके, This line cannot be unmuted. हाँ सॉरी यार, मेरी चैट चली गई थी। तो अभी क्या मैं विजिबल हूँ सबको? हेलो? यस सर, आपकी वॉइस भी आ रही है, पीपीटी भी शो हो रही है। हाँ सॉरी, वो मेरा थोड़ा इश्यू हो गया था। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं क्वेश्चन ये पुट अप कर रहा था कि किसी को समझ में आया? मैंने जो पिज्जा का एग्जांपल लिया है, मतलब तुम्हें बेस मिल रहा है, तुम्हें सॉसेस मिल रही है, तुम्हें चीज मिल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मिल रहा है। मैं मान के चलो तुम्हें कहूँ कि भाई मुझे कोई चीज वहां पे लगानी है, ठीक है, तो मतलब मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर दो भाई, मुझे कुछ चाहिए, तो तुम्हें IaaS ये प्रोवाइड करता है। समझ में आया कि पिज्जा के एग्जांपल से? अगर तुम लोग को मैं एक डेली यूज का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये तुम लोग के लिए इजी रहेगा थोड़ा, इसी वजह से।
अगर सबको समझ में आया तो जरूर चैट में बताओ, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। नहीं 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 नहीं। मतलब ये टॉपिक आता है AWS में है, ऐसा नहीं है, बट ये सब में आता है। ऐसा मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि किसी में नहीं आता है किसी में आता है। मैं सबको इसलिए समझा रहा हूँ कि बेसिकली लोगों को क्लियर हो जाएगा एक आइडिया, बस एक डेली लाइव एग्जांपल के थ्रू। ओके, और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इसके बाद अज्योर के बारे में भी पूरा बताऊंगा कि अज्योर क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है प्रियांशु, अगर तुम कह रहे हो। हाँ देखो, मान के चलो तुम्हारे पास, मैं तुम्हें जैसे पिज्जा का एग्जांपल दिया, तुम्हें कुछ भी और एग्जांपल उठा लो। ठीक है, तुम्हें अगर रोटी सेकनी है तो तुम्हें मैं कहूँ कि भाई तुम्हें गेहूं पीसना है, ठीक है, तुम्हें ही पानी लाना है, तुम्हें ही उसको गूंदना है और तुम्हें ही रोटी तैयार करके देनी है। ठीक है, सब कुछ तुम्हें ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तुम हो गए कि तुम्हारा ही काम है, तुम किसी वेंडर की हेल्प नहीं ले रहे। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें पिसा हुआ गेहूं दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें पानी दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें डो पूरा तैयार करके दूंगा, तुम्हें बस रोटी बनानी है, तो तुम्हें कर लोगे। तो ये हो गया, मैं तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही दे रहा हूँ, तुम्हें बनी बनाई चीज पहले से ही दे रहा हूँ, तुम बस अपना काम करो इस पे आके। समझ रहे हो, ये चीज है, ऐसे है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब अगर किसी को डाउट है तो फिर से पूछ सकता है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं और भी इलैबोरेट करके बता सकता हूँ। समझ में आया सबको? गुड गुड गुड। ठीक है, मतलब तुम लोग चल रहे हो, तो कोई भी डाउट हो, चाहे यहाँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं मजाक बनाएगा, कुछ भी नहीं कि यार इसने ये क्या पूछ लिया। ठीक है, हम सब यहाँ सीखने आए हैं, सब लोग बहुत यंग है, हम सब भी, मैं खुद बहुत यंग हूँ। ठीक है, हम सब सीखने आए हैं और आज भी हम सीख ही रहे हैं। ठीक है, ओके, डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेम एंड IaaS। ओके, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यार, ऑन प्रेमाइसिस एक ऐसी चीज होती है जिसमें तुम्हें हर चीज खुद करनी होती है, तुम्हारे पास कोई टाइप का सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, मान के चलो मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें मैंने किचन थमा दिया है, तुम्हें किचन में सब, तुम्हारा ही किचन है, तुम्हें ही सब कुछ लाना है, तुम्हें ही गैस लानी है, तुम्हें ही पैन लाना है, तुम्हें ही सब्जियां लानी है, तुम्हें ही सब कुछ लाना है। ठीक है, समझ में आया? पर तुम्हें सब कुछ तुम्हें ही करना है, सब्जी मार्केट जाके तुम ही खरीदो, तुम ही काटो, तुम ही बनाओ, तुम ही पकाओ और तुम ही खाओ। ठीक है, तुम्हारी को हेल्प करने के लिए नहीं है। अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलूं कि मैं तुम्हें सब्जियां दूंगा, कटी सब्जियां दूंगा, ठीक है, कटी हुई सब्जियां दे रहा हूं मैं तुम्हें, जाओ मैं तुम्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता हूँ, कटी सब्जियां दे रहा हूं मैं तुम्हें तेल देता हूं मैं तुम्हें, जो बनाना है बनाओ उसका। ठीक है, मैंने तुम्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ा दिया। पर मैंने अभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें गैस दे रहा हूँ, तुम्हें चूल्हा दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें सिलेंडर दे रहा हूँ, या फिर तुम्हें पूरा किचन दे रहा हूँ। मैंने बस इतना कहा कि भाई मैं तुझे सब्जी दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बस इतना कहा कि मैं तुम्हें सब्जी दे रहा हूँ काट के, तुम्हें दे रहा हूँ मैं तेल, और तुम्हें मैं कह रहा हूँ तुम बनाओ अपने हिसाब से सब्जी। तो ये हो गया कि मैंने तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ा दिया अपना, अब तुम्हारा काम है उस पर ऐसे करना है काम। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और ऑन प्रेमाइसिस का डिफरेंस। ऑन प्रेमाइसिस में तुम्हें सब कुछ खुद ही करना होता है, तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हेल्प नहीं। ठीक है, समझ में आया सबको? जल्दी से सब लोग बताओ अगर सबको समझ में आया तो। गुड 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 गुड, थोड़ा एक्टिव रहो, अच्छा लगता है, पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है यार। ठीक है, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया, गुड। ठीक है, तो अब इसमें 3 चीजें हैं, ये हाईली फ्लेक्सिबल है, हाईली स्केलेबल है। हाईली फ्लेक्सिबल मतलब कैसे भी ढह सकता है ये, मतलब तुम इसे अपने हिसाब से बना सकते हो, तुम्हें जरूरी नहीं, जैसे मैं तुम्हें कहा, तुम्हें मैंने सब्जी काट के दे दी, तुम्हें सब दे दिया, तेल दे दिया, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी बनाओ। ठीक है, हाईली स्केलेबल मतलब तुम इसकी मात्रा कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इट। समझे इसका मतलब? अगर ये 2 टर्म्स का मतलब किसी को नहीं समझ में आया तो वो जरूर पूछ सकता है, कोई इश्यू नहीं है कि हाईली फ्लेक्सिबल और हाईली स्केलेबल का मतलब क्या होता है। मतलब वो बहुत ही स्केलेबल है, मतलब ऊपर नीचे आप इसकी रेंज चेंज कर सकते हो, आप चाहे तो थोड़ा कम नमक डाल सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप जो रिक्वायर करते हो। मैंने आपको नमक पकड़ा दिया। ठीक है, अब एक्सेसिबल बाय मल्टीपल यूजर्स मतलब एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये हाईली अवेलेबल इन द मार्केट हो गया इस तरीके से। ठीक है, कि वो मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब नमक ही को ले लो, क्वांटिटी में अवेलेबल है, तुम्हें बस चाहिए और डाल दो। अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई जाके नमक बनाओ, तो फिर भाई वो तो सब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ना, पर मैं कहूँ तो नमक दे रहा हूँ, वो चीज हो गई। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव की बात आती है तो मैं समझाता हूँ। अब एक बात समझो, मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें एक घर खरीदने को कहूँ, आज मैं तुम्हें कहूँ 1 करोड़ का घर खरीद लो। ठीक है, क्या तुम वो 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए इतना पैसा लगा पाओगे अभी? मतलब अगर बहुत अमीर हो तो ऑब्वियसली। ठीक है,
पर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे उसी घर का 5,000 रुपए का रेंट दूंगा, सारी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करूंगा, बस तुम्हें एक घर दे रहा हूँ, अंदर तुम्हें जो करना है करो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें किचन लगाना है, तुम्हें बेडरूम बनाने हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो, मतलब बेडरूम सब बना हुआ है मतलब, बट उसके अंदर बेड लगाना है, तुम्हें लाइटें लगानी, जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें बस एक घर दे रहा हूँ 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच के रेंट का, तो तुम किस लिए जाओगे? जो 5 से 10,000 रुपए तुम्हें रेंट दे रहा है उसी के लिए जाओगे ना। अब 1 करोड़ तुम डाल के थोड़ी वहां से पूरा घर खरीद पाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो। मतलब अगर तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो, अगर समझ रहे हो तो जरूर बताओ। समझ में आ रहा है ना सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? गुड गुड। तो देखो, जैसे कि तुम्हें अब रेंट लेना है, ठीक है, अब तुम रेंट किसी को जैसे पर्टिकुलर इंसान को तुमने रेंट दिया और तुमने वो चीज ले ली, तुम्हें उतने ही दाम में वो पूरा जगह मिल रही है जितने में तुम 1 करोड़ में खरीदते, तुम्हें बस महीने महीने का थोड़ा सा रेंट देना पड़ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए ईज है, तुम रह सकते हो, ठीक है, और रेंट देने में कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ही ऐसी चीज है जहाँ पे हम सही में रेंट भी देते हैं और हमें सर्विसेज मिलती है, तो वही वाला ऐसा, ठीक है, सेम। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। आई होप IaaS सबको क्लियर है। IaaS का फुल फॉर्म मैं एक बार और बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक, सबको क्लियर है? आगे मूव कर सकते हैं हम लोग? सब बता दो एक बार। ओके, कोई ऐसा तो नहीं है यार जो बोर हो रहा हो, मतलब कोई बोर हो रहा है तो वो भी बता दो, मतलब कोई बोर तो नहीं हो रहा ना यार? बढ़िया 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 बढ़िया, अच्छा है, गुड यार, गुड। सही बोला, शमशूर ना। हाँ, सही बोला सही बोला, बोर हो ही नहीं सकते उसके लायक में आप आके। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी चीज जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, ये एक रटी रटाई डेफिनेशन है, मैं ज्यादा इसमें घुसूंगा नहीं, मैं तुम्हें ऊपर से पढ़ के बता देता हूँ और तुम्हें एक बहुत डेली एग्जांपल जैसे मैंने पिज्जा का दिया था वैसे ही समझा दूं। ठीक है, देखो क्या होता है कि जहां पर एक वेंडर तुम्हें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स सब कुछ प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे, ठीक है, उस टूल्स को आप यूज करके एक एप्लीकेशन डेवलप करते हो। अगर मैं तुमसे कहूं, सबने लैंग्वेजेस पढ़े होंगे ना, पाइथन, ये सब, पाइथन वाइथन सब पढ़ा होगा ना? हाँ, उसका बिल्कुल सही कहा, गूगल ऐप इंजन टाइप, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने पाइथन पढ़ी है, किसी ने कोई भी टाइप की लैंग्वेज पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी, मतलब अगर नहीं पढ़ी है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। पास क्या करता है, तुम्हें पूरा एक प्लेटफॉर्म रेडी करके देता है कि भाई तुम इस पे ये लैंग्वेज रन कर सकते हो, तुम्हें जो लैंग्वेज रन करनी है इस पे रन हो जाएगी। मैं तुम्हें टूल्स देता हूँ, मैं तुम्हें नेटवर्क देता हूँ, मैं तुम्हें सब देता हूँ, तुम अपना काम करो, बस तुम अपना एप्लीकेशन डेवलप करना है तुम करो, मैं तुम्हें पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। ठीक है, वही वाली हिसाब है। अब ऐसा हो जाए कि मान के चलो इंडियन रेलवे में प्लेटफॉर्म ही नहीं है, लोग ट्रेन के लिए कहाँ जाएंगे फिर? वहां पटरी के साइड में बैठ जाओगे जाके, वही वाला हिसाब है। मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, तुम्हें बस ट्रेन में चढ़ना है, ये वाला हिसाब है। समझ गया ना तुमने मेरे कहने का मतलब? तो जो पास यूजर्स होते हैं वो बेसिकली डेवलपर्स होते हैं। डेवलपर जैसे हम सब एक डेवलपर ही हैं, ठीक है सर? यस, ओके, हाँ, तो हम सब एक डेवलपर ही हैं। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दूं इसका, जैसे कि पिज्जा का जैसे मैंने दिया था, तो अभी तक बताओ मैंने पिज्जा में क्या बताया था कि हमें डो चाहिए होगा, हमें चीज चाहिए होगा, ठीक है, हमें सॉसेज चाहिए होंगी, और हमें जो अलग अलग टॉपिंग वेजीज जो भी चाहिए वो चाहिए होगा। मैंने तुम्हें इतना बताया ना, ठीक है, मैंने तुम्हें चलो ये सब बताया, ठीक। अब अगर बोलो मैं तुम्हें गैस दूंगा, तुम्हें पैन दूंगा, ठीक है, तुम्हें गैस दे रहा हूँ, तुम्हें पैन दे रहा हूँ, तुम्हें फुल फ्लेश किचन दे रहा हूँ, ठीक है, अब तुम्हें जो करना है करो, प्लस पुरानी चीजें भी दे रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे ही रहा हूं, बट उसके साथ एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? तो वही होता है कि ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया। अब मतलब कि तुम्हें गैस दे दी, तुम्हें पैन दे दिया, वो दे दिया, तो इससे क्या होता है कि तुम अब एक्सटिंग्विश करके पूरा पूरा ओवन दे दिया मैंने तुम्हें, सब दे दिया, अब तुम उससे तुम अपना पूरा बना सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तुम्हें बस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से दिया है, ऊपर से प्लेटफॉर्म और चढ़ा दिया मैंने। तो ये चीज है, सब समझ के ना?
हाँ, yes, you can say. Yes, Ilka. Yes, you can say. Okay. Platform as a service is accessible by multiple user. सेम चीज है, स्केलेबल है, मतलब बहुत तरीके से आप उसको सेट कर सकते हो, और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे बिल्ड होता है। मतलब एक वर्चुअल नेटवर्क पे, जैसे कि मान के चलो तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा जो वर्चुअल नेटवर्क है वो वर्चुअल मशीन है, वो दूर बैठी है, तो तुम उससे डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होगी। और तुम्हें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हें ये सेट करना है, ये सेट करना है, सब कुछ क्लाउड पे प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब तुम्हें वहां पे प्रोवाइड करके देंगे। तो आई गेस सबको समझ में आया, पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सबको क्लियर है? सब क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और सबसे मेन चीज पे आते हैं, SaaS। गुड गुड, चलो। अच्छा, अगर तुम लोग को टाइप करने में बहुत लंबा लंबा टाइप करने में दिक्कत है तो YN लिख दो, जैसे कि यशवंत ने लिख दिया, इजी रहेगा। Y मतलब यस और N मतलब नो, कि तुम्हें नहीं समझ में आया, मैं आगे तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, इजी रहेगा तुम लोग के लिए भी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि SaaS क्या होता है। ठीक है, हाँ हाँ यश, गुड। तो तुम्हें बता देता हूँ कि SaaS क्या होता है। SaaS मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो SaaS प्लेटफॉर्म्स मेक सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू यूजर्स ओवर द इंटरनेट, यूजुअली फॉर अ मंथली सब्सक्रिप्शन की। बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, तो मैं पूरा एक सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करके दे रहा हूँ भाई। मैं, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करा है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का। M365 इसको कहते हैं लोग बहुत ज्यादातर। जीमेल टाइप, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस यस यस, हाँ बिल्कुल सही बोला। तो वो तुम्हें पूरा सॉफ्टवेयर ही वहां प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, जैसे वही मेरा वो घिसा पिटा पुराना पिज्जा वाला एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब तो सुन के भी भूख लग रही आई होगी। ठीक है, तो मान के चलो कि वो पिज्जा में अगर मैं गैस, ठीक है, तुम्हें सब कुछ पहले ही प्लेटफॉर्म दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सॉफ्टवेयर एज सर्विस किया, मैं तुम्हें पूरा पिज्जा ही बना के दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं एक ऐसा वेंडर हूँ, तुम बैठो आराम से, सर ये पिज्जा है, ये तैयार है, आप खा लीजिए। जोमेटो, स्विगी एक तरीके से वही काम कर रहे हैं, तुम्हें सॉफ्टवेयर प्री प्रिपेयर करके दे रहे हैं, तुम उनको पैसा दे रहे हो, तुम्हें सॉफ्टवेयर मिल रहा है, सिंपल, कुछ भी और नहीं। ठीक, यही चीज है, सिंपल। तुम्हें पूरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी मिल रहा है तुम्हारी उस पर्टिकुलर साइट से। ठीक है, आउटलुक अगर किसी ने यूज करा होगा तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो माइक्रोसॉफ्ट का, जो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ठीक है, अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, ऑब्वियसली होस्टेड ऑन अ रिमोट सर्वर बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। ठीक है, तो होस्टेड ऑन अ रिमोट सर्वर बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि तुम और मैं नहीं है यहाँ पे, वो कोई और है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो ये सर्वर है इसको होस्ट कर सकता है कहीं भी, तो कोई भी इंसान इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है कहीं भी एक तरीके से। ठीक है, स्केलेबल है। ठीक है, स्केलेबल मतलब वही चीज है कि तुम अलग अलग हिसाब से अपने बिजनेस के हिसाब से इसको सेट कर सकते कि भाई मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, मेंटेनेंस से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पूरा सेटअप तुम्हें क्लाउड करके देता है। तुम्हें बस अपना सॉफ्टवेयर दिखाना होता है, एक प्रोडक्ट बन के तुम्हें मिल जाता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता। ये हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एस, IaaS, PaaS और SaaS, ये तीनों मिलके एक ऐसी सर्विसेज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये मेन है। ठीक है, आगे सबको समझ में आ गया होगा अब तक, तो हम आगे बढ़े। गुड गुड गुड, चलो अब ये तो मैं दिखा देता हूँ बेसिकली क्या है। ये ऑन प्रेमाइस है, इसमें सब कुछ तुम्हें मैनेज करना होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर मतलब जो तुम्हारा दो जगह के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है। वो एक, जैसे तुम लोग ने कोड में पढ़ा होगा, या फिर जो तुम्हारे कर्नल्स और इन सब के बीच में मिडलवेयर होते हैं। ठीक है, उसका पता व्हाट इज ऑन प्रेमाइस। ओके ठीक है, यार देखो, ऑन प्रेमाइसिस का मतलब यही हो गया कि जो चीज तुम्हारे पास सब पहले से अवेलेबल है, लेकिन सब कुछ का मेंटेनेंस तुम्हें ही करना है, तुम्हारा खराब हो तुम्हें ही बनाना है, कुछ उस पे और तुम्हें मतलब कुछ जाके खरीदना हो तो तुम्हें ही खरीदना है, तो कोई तुम्हें हेल्प करने वाला नहीं है वहां पे। कोई तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, कुछ नहीं कोई प्रोवाइड करेगा, तुम्हें अपना ही पैसा लगाना है, और वो तुम्हें और महंगा भी पड़ सकता है आगे जाके।
ठीक है। अगर कोई चीज बहुत बुरी तरह डाउन हो गई तो उसके लिए कोई मेंटेनेंस नहीं है तुम्हारे पास, कोई तुम्हें सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा उसकी। एग्जाम्पल, तुम एक बिजनेस चलाते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी दिया था, तुम एक बिजनेस चलाते हो, अब मान के चलो तुम्हारे सारे के सारी डेटा सेंटर एक ही जगह पे, डेटा सेंटर समझते हो कुछ, तो डेटा सेंटर एक ही जगह पे। या तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल चलो मैं देता हूँ, तुम्हारा घर है, ठीक है, घर में किचन है, ठीक है, घर में किचन है, तुम्हें जाके सब्जी खरीदनी है, तुम्हारा ही किचन है, तुम्हें जाके सब्जी खरीदनी है, तुम्हें जाके गैस लानी है, तुम्हें जाके सब कुछ सेटअप करना है, तुम्हें जाके लाइटर खरीदना है, तुम्हें जाके नमक, पानी, मिर्च, जो भी तुम्हें चाहिए सब तुम्हें ही लाना है, कोई तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं है। तुम जैसे घर में हो, समझ जाओ वही है तुम्हारा एक तरीके से क्या कहते हैं, ऑन प्रेमाइसेस। ये हो गया, बस समझ में आया उत्कर्ष? उत्कर्ष ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, कोई नहीं। चलो मतलब सब लोग को वैसे ही बता दे रहा हूँ अगर हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब हम इन सबसे हटते हैं, अब आते हैं हम लोग एज्योर पे, ठीक है। So Azure Cloud Platform has more than 200 products and cloud services designed to help you bring new solutions to life, to solve today's challenges and create the future. Build, run, and manage applications across multiple clouds on premises and at the edge with the tools and frameworks of your choice. तुम अपने हिसाब से सब कुछ सेटअप कर सकते हो। What is the difference between IaaS and on premises? Okay, sorry everyone, उसका एक क्वेश्चन है तो मैं जल्दी से उसको बता के फिर हम फॉरवर्ड करते हैं, ठीक। तो उसका देखो, जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हें ही लाना पड़ रहा है, ठीक है, सब कुछ तुम्हें ही जाके खरीद के लाना पड़ रहा है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। अब मान के चलो मैं तुम्हारा एक वेंडर हूँ, ठीक है, सब्जी वाला जिसको कहते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो घर तक आ रहा है, ठीक है, तो मैं कह रहा है ये लीजिए फल, ये लीजिए बैंगन, ये लीजिए ये लीजिए, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, तेल खरीदना मेरे से खरीदिए, मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। राशन की दुकान पे जाते हैं ना, राशन की दुकान तुम्हारे घर तक आ जाए मान के चलो, तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो मैं वो पहले ही दे रहा है कि सर आप मुझे ये लीजिए, इतना पैसा दीजिए, मुझे ये लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको ला खुद ही दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको सब पहले से प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको तेल दे रहा हूँ, मैं आपको सब्जियां दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर आप इसको कैसे बनाएंगे, तो हो गया ये आपको मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हूँ, मतलब एक बेस तैयार करके पहले से ही दे रहा हूँ। अब आपको जाना नहीं पड़ेगा किलोमीटर दूर दूर तक कि भैया सब्जी कहाँ मिलेगी, मुझे सब्जी खरीदनी है, ये समझ में आया उत्कर्ष? तो ये डिफरेंस है ऑन प्रेमाइस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बीच में। तो मैं ऑन प्रेमाइसेस में, हाँ ठीक मतलब समझ गया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलो हम अज्योर पे आते हैं बेसिकली। तो अज्योर का एक लिटरल मीनिंग होता है आसमान, ब्लू स्काई, ठीक है। अज्योर का लिटरल मीनिंग होता है ब्लू स्काई, ठीक है, मतलब जो चीज जहां पे कोई क्लाउड नहीं है, मतलब ऐसा वाला क्लाउड ना समझना, मतलब जो क्लाउडी एरिया, हवा नहीं, जहां पर बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ होता है, उसको कहते हैं अज्योर, ठीक है। तो वाला समझना, ये भी टॉपिक बहुत साफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर तीनों चीज प्रोवाइड करता है तुम्हें, IaaS, PaaS और SaaS। फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, मतलब तुम अपने कंप्यूटर रिसोर्सेस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। कंप्यूटर रिसोर्स मतलब जो तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो तुम्हें कुछ भी टाइप की चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे कंप्यूटर रिसोर्सेज होगा, ठीक है। सपोर्ट करता है, हर OS को करता है, लगभग हर लैंग्वेज को करता है, हर टूल करता है, हर फ्रेमवर्क को करता है। 99% अवेलेबिलिटी SLA मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट ये होता है कि भाई मैंने इस पे एग्रीमेंट करा है, मुझे तुमसे ये सर्विस चाहिए, तो तुम इतना सर्विस प्रोवाइड करोगे, इतना परसेंटेज अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और 24/7 टेक सपोर्ट है, ये सच्चाई है। मैं खुद 2-3 बार रेस कर चुका हूँ, कोई इश्यू आता है तो, या कुछ भी मैं डिटेक्ट करता हूँ कि जो उनके में कुछ दिक्कत आ गई है, या जैसे कि कभी कभार होता है सर्विसेज में क्यों इश्यू आ रहा है या स्लो क्यों हो रहा है, तो अगर टेक सपोर्ट को बोलो तो वो बता देती है। ऑल्दो ऐसा बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम, अगर तुमने जब तक बहुत बेसिक टियर नहीं लिया होता, मतलब बहुत बेसिक पैसा देके बहुत बेसिक चीज नहीं ली होती। ग्लोबल डेटा हाउस इन जियो सिंक्रोनस डेटा सेंटर, मतलब अक्रॉस द ग्लोब फैला हुआ है वो अज्योर, अक्रॉस द ग्लोब। US में भी है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, हर जगह तुम्हें मिलेगा, हर जगह इसके डेटा सेंटर है, ठीक है। तो ये है बेसिकली अज्योर। अब समझ में मतलब अज्योर क्या है, क्या प्रोवाइड करता है, ये सब अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ में। इसकी हिस्ट्री डाल लेते हैं, सबसे बोरिंग पार्ट है, मैं लिटरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज ट्राई करना कि मेरे साथ बने रहो और सोना नहीं, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है। तो 2005 में बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रुप नेटवर्क को लिया था, ये सब बहुत पुरानी बात है। तो बिल गेट्स ने ग्रुप्स को बोला कि
भाई मेरे को 5 से 3 डायरेक्ट इन लोग से मिलना है और रिपोर्ट चाहिए मुझे इन 3 चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से, ठीक है। तो फिर उन लोगों ने अमित श्रीवास्तव से मिले, फिर एक बहुत बड़ा ही चेन क्रिएट हुआ, ठीक है। उन लोगों ने डिसाइड करा आओ एक क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते, ठीक है। मतलब ऐसा चीज जो दुनिया को हम घर बैठे बैठे प्रोवाइड कर सके, उन्हें कहीं जाके लेना ना पड़े, ठीक। तो 2008 अक्टूबर में जाने की आज से कितने साल पहले हो गया, 12 तो हो गया तुम्हारा 20 और 2 22 नहीं 14 साल पहले, 14 भी नहीं 13.5 साल को ऐसे मान लो, ठीक है। तो 13.5 साल पहले सबसे पहली चीज जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने निकाली थी वो था विंडोज अज्योर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यही विंडोज अज्योर प्लेटफॉर्म आगे जाके बनता है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। तो यही उसकी हिस्ट्री है, मतलब बेसिकली सब पढ़ के बता देता हूँ। अनाउंस एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस, अपडेटेड विंडोज अज्योर सीटीपी, इसकी डिटेलिंग में भी मत जाना, ठीक है। तुम लोग बस अंडरस्टैंड करो कि कैसे हिस्ट्री गई थी, ठीक है। enabled full trust, PHP, Java, CDN, CTP and more. Windows Azure प्लेटफॉर्म कमर्शियली अवेलेबल, अब सबको कमर्शियली अवेलेबल हो गया था। विंडोज Azure अपडेट, .NET फ्रेमवर्क, OS वर्जनिंग, CDN, SQL Azure अपडेट, प्लेटफॉर्म एनहांसमेंट हुई थी 2010 में। विंडोज Azure कनेक्ट, इम्प्रूव डेव IT प्रो एक्सपर्टीज, डेव मतलब डेवलपमेंट होता है, ठीक है। दिसंबर 2011 में ट्रैफिक मैनेजर आया था, एसक्यूएल एज़्योर रिपोर्टिंग और एचपीसी शेड्यूलर हुआ था। 2012 में वेबसाइट वर्चुअल मशीन फॉर विंडोज एंड लिनक्स। विंडोज एंड लिनक्स तो सबने यूज करा होगा, विंडोज मोस्टली यूज करते हैं, लिनक्स भी यूज करते हैं, लिनक्स उबंटू के साथ आता है। तो पाइथन एसडीके, न्यू पोर्टल, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। लोकली रिडंडेंट स्टोरेज मतलब जो तुम्हारे ही बेसिकली उसमें एक रेप्लिकेशन क्रिएट कर देता है। चलो ठीक है, इतना हो गया। एक काम करते हैं हम, ये हिस्ट्री तो होती रहेगी, तो मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ कि एज़्योर ने 2019 से 2020-21 तक सारा फ्रंट सर्विस अवेलेबल कर दिया, ठीक है। ये हो गया। ये कुछ कंपनीज है जो एज़्योर में आज भी इन्वेस्ट करती है, वर्जन, MSI, LG, सेंचुरी लिंक, एनटीटी अमेरिका, विकीमीडिया फाउंडेशन, लिंक्डइन कॉर्प, न्यूज कॉर्प, अडोबे और इंटेल, ये सब के सब एज़्योर यूज करते हैं। AWS वर्सेस Azure वर्सेस GCP फॉर अ बिगिनर। देखो यार, मैं तुम्हें इतना ही बोल सकता हूँ कि सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। फॉर आर लाइक बीइंग आई वुड टेल यू यस कि Azure एंड AWS आर द टॉप। GCP अभी बहुत दूर है, वहां पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। अभी बहुत सारी सर्विसेज GCP नहीं प्रोवाइड करता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वो लैक भी करता है, तो GCP अभी वहां नहीं पहुंच सकता। रही बात AWS और Azure की, AWS एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और Azure एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसका अगर तुम ग्रोथ ग्राफ देखोगे, अभी नेट पे कोई भी सर्च करेगा तो Azure का ग्रोथ ग्राफ बहुत है, ठीक है। और GCP अभी बहुत पीछे है, ठीक है। अभी नेक्स्ट तुम लोग का सेशन AWS पे ही होगा प्रॉपर, मतलब डॉक्टर के साथ AWS भी साथ समझाएंगे, जो नेक्स्ट तुम्हारा कल होगा, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक। तो अभी इतना ही है ये। हाँ, अब आते हैं मेन चीज पे, Azure के रिसोर्सेज। मैं तुम लोग को बेसिकली Azure का एक बार प्लेटफॉर्म दिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा वहीं पे शो करूंगा ज्यादा चीजें, ठीक है। तो ये आ गया Azure वर्चुअल मशीन। देखो वर्चुअल मशीन सबको पता है क्या होती है, अगर सबको पता है तो जल्दी जल्दी चाका बताओ कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, हमें पता है। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं घुसूंगा उसमें, क्योंकि फिर वो बहुत वास्ट टॉपिक है और सब लोग बेसिकली प्रैक्टिकल ही देखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा शिवांगी तुम्हें नहीं पता, पूजा तुम्हें नहीं पता, तो मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन एक ऐसी चीज होती है, जैसे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा कंप्यूटर बैंगलोर में है, तो एक कनेक्शन क्रिएट होता है इन दोनों के बीच में, एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो दोनों के बीच में। सिट्रिक्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जो ये चीज प्रोवाइड करता है, और बहुत सारी है, Azure भी प्रोवाइड करता है, AWS भी प्रोवाइड करता है, जो बेसिक एक तुम अपने डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। सिट्रिक्स एक ऐसा है जो एक RDC प्रोवाइड करता है, तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो कनेक्शन होता है तुम एक वर्चुअल मशीन से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, तो वो वर्चुअली कनेक्शन हो गया। तो एक वर्चुअल मशीन वो होती है जिससे तुम दूर बैठे बैठे भी कनेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे पास नहीं है, वो कहीं भी पड़ी हो सकती है, वो यूएस में हो सकती है, वो यूरोप में हो सकती है, वो अफ्रीका में हो सकती है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो देखो, तुम्हें सबसे पहली चीज है कि प्री रिक्वेस्ट होते साइज चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ VMs होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यस करेक्ट, या काइंड ऑफ बहुत दूर बैठा है तो एक तरीके से वही क्रिएशन है। हाँ,
The configuration of the VM after it starts, the operating system, the VM runs. I guess तुम्हें VM लोग को तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल मशीन नहीं है यार, बस Azure पे थोड़ा तुम्हें वो एक तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ही प्रोवाइड करती है. This is a very big example of infrastructure as a service. ठीक है, ये हो गया. Virtual machines are infrastructure as a service. सबको समझ में आया? हाँ, VMware, वेरी गुड जेसन. VMware एक कंपनी है जो खुद का VM, मतलब खुद का उनका प्लेटफॉर्म है VMware, उस पे जाके आप VMs भी बना सकते हैं. एक हाइपर वर्जन का भी होता है वो, आप Oracle का भी है, करेक्ट, Oracle का भी है. हाइपरवाइजर कहते हैं बेसिकली एक, तो उसके जरिए आप VMs क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़े, सब लोग तैयार है, आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लोड बैलेंसर्स. चलो मान के चलो कि तुम्हारा बहुत बड़ा नेटवर्क आ रहा है अंदर. लोड बैलेंसर का काम होता है कि तुम्हारे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स तक एग्जैक्टली उतना लोड पहुंचाना जितना वो लोग झेल सकेंगे. ठीक है, लोड बैलेंसर का काम होता है, मान के चलो मेरे को हर एक को एक एक टॉफी देनी है, तो मैं बीच का लोड बैलेंसर हूँ. मेरे को 5 टॉफी आई, 5 VM लगे हैं, तो मैं हर एक को एक ही दूंगा. एक को दूसरा, एक को 2 दूंगा तो एक VM को कुछ भी नहीं मिलेगा और एक VM पे 2 का लोड पड़ जाएगा. तो लोड बैलेंसर करता है कि जब बहुत ज्यादा डेटा या ट्रैफिक फ्लो होता है, ठीक है, उसको कैसे वर्चुअल मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, ये काम होता है लोड बैलेंसर का. अगर सबको पहले से पता है लोड बैलेंसर क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है. जिसको नहीं पता वो यही समझ लो कि लोड बैलेंसर का इतना काम होता है कि वो कैसे, अच्छा ठीक है, तो लोड बैलेंसर का बेसिकली यही काम होता है कि वो कैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक को, बहुत भयंकर ट्रैफिक को, अरे तुम लोगों ने यही देखा है ना, मान के चलो बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है तो क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिस कहता है इधर से जाओ, वो कहता है इधर से जाओ, वो कहता है इधर से जाओ, तो नेटवर्क किधर भेजता है, वो कहता है इस डायरेक्शन में जाओ, इधर एक खाली है, तो वो इधर VM को पकड़ाता है. मतलब रोड तुम्हारी VM हो गई, व्हीकल तुम्हारा नेटवर्क हो गया और ट्रैफिक पुलिस तुम्हारा लोड बैलेंसर हो गया. ठीक है, करेक्ट, एक तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. बहुत बढ़िया. हाँ, सबको समझ में आया? अब से लेकर स्टॉप राउटिंग द ट्रैफिक टू अ फेल्ड वर्चुअल मशीन इन द पूल. मान के चलो कोई रोड खराब है तो मैं तुमसे कहूंगा तो नहीं भाई डाल दो गाड़ी उसी में, चले जाओ, गिर जाओ खाई में, ऐसा तो कहूंगा नहीं मैं तुम्हें. मैं कहूंगा ना कि ये दूसरा रास्ता पकड़ो, वो वाला हिसाब है. अगर कोई वर्चुअल मशीन डाउन होती है तो जो ट्रैफिक फ्लो है उसको दूसरा रास्ता पकड़ाता है लोड बैलेंसर, उस वर्चुअल मशीन तक जाने भी नहीं देता है. ठीक है, तो ये चीज हो गई तुम्हारी लोड बैलेंसर का काम. सबको समझ में आया? आगे बढ़े. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, गुड. अब Azure SQL डेटाबेस क्या होता है? यह होता है तुम्हारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. मैं तुम्हें इस फिगर का डिटेलिंग तो नहीं अभी बताऊंगा, बट मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा. ठीक है, जो ऐसा ही कुछ होगा, वो भी प्रैक्टिकल. ठीक है, देखो क्या है कि Azure डेटा, पहली बात तो बताओ SQL सबको पता है ना क्या होती है. किसी को कंफ्यूजन की सर ये SQL क्या है, किसी ने कभी ऐसा तो नहीं SQL ना पढ़ी हो, किसी को नहीं पता कि SQL क्या होती है. जल्दी से चार्ट में बताओ, अगर किसी को नहीं पता SQL क्या होती है तो एक टर्म में बता दूंगा. बिल्कुल सही आरशी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. बिल्कुल सही ऋषभ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो जिसको नहीं पता SQL क्या होता है, वो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. एक ऐसी लैंग्वेज जो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करके, डेटाबेसेस सबको पता है, डेटाबेसेस वो जगह होती है जहां पर अपने टेबल्स को स्टोर करते हो. जैसे मान के चलो मैंने एक टेबल है, उसको मैं कहीं स्टोर करना है तो मैं डेटाबेस में स्टोर करूंगा. डेटाबेस कैसे, मतलब मान के चलो एक टेबल है जिसका नाम है पीपल में नाम आ गए, नेम, ID और उनका फोन नंबर से. ठीक है, हाँ, टाइप ऑफ RDB में तो वही होगा कि रिलेशनल डेटाबेस होता है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं. RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि आकिब ने बताया. हाँ, डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं. किस टाइप के डेटा स्टोरेज के लिए? टेबल स्टोरेज के लिए. टेबल फॉर्म करके डेटा को स्टोर करा जाता है उसके अंदर. बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ. ठीक है, डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में ही डेटा स्टोर करते हैं. टेबल मतलब कॉलम एंड रो. जैसे एक्सेल देखिए तुम लोगों ने, एक्सेल पे ऊपर और लेफ्ट साइड में जो तुम्हारी रोज होती है वो तुम्हारा डेटा होता है, और जो तुम्हारी फील्ड्स होती है ऊपर लिखते हैं नाम, पता, नंबर, कुछ भी, वो तुम्हारा कॉलम्स होते हैं. तो सेम फॉर्मेट होता है टेबल्स का. ठीक है, सबको समझ में आया कि SQL किस लिए यूज होती है. अब SQL मतलब डेटाबेस क्या होता है, तो SQL किस लिए यूज होती है कि उसके अंदर से मान के चलो तुम्हें कुछ डेटा फेच करना है, तुम्हें कुछ डेटा डालना है उस डेटाबेस में,
तुम्हें डेटा डिलीट करना है उस डेटाबेस से, वहां पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का काम आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जैसे कि एक लैंग्वेज की तरह ही होती है, बहुत सिंपल होती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है, इसमें अपग्रेडिंग, पैचिंग, बैकअप्स और मॉनिटरिंग करते हैं कोई भी यूजर इन्वॉल्वमेंट के द्वारा। कुछ नहीं होता, सब कुछ एसक्यूएल डेटाबेस ही मैनेज करता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें डेटा डालना है अपना और बाकी वो देख लेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होते हैं? आगे बढ़े, बताओ। नहीं समझ में आया तो अभी पूछ सकते हो। गुड गुड, नाइस, ओके। हाँ, तो एक सेकंड रुकना है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अज्योर स्टोरेज, जो सबसे फंडामेंटल, सबसे बड़ी चीज है, जो बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। तो अज्योर स्टोरेज प्लेटफॉर्म इज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न डेटा स्टोरेज सिनेरियोस। कोर स्टोरेज सर्विसेज ऑफर अ massively scalable object store for data objects, disk storage for Azure virtual machines, a file system service for the cloud, a messaging store for the reliable message, and a NoSQL store। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 5 तरीके के हैं: Azure Blogs, Azure Files, Azure Queues, Azure Tables और Azure Disks। ठीक है, Azure Blogs एक ऐसी चीज होती है जहां पे तुम बाइनरी डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि तुम्हारी इनको बाइनरी लेवल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि मान के चलो तुम्हारा वीडियो, इमेजेस, ठीक है, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गया, CSV, Azure Cloud self a cloud and a storage system, then why does it use SQL database or is it working on SQL database only? ना 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 देखो मैं बताता हूँ। Azure SQL databases बेसिकली ऐसी चीज होती है जो तुम्हें क्लाउड पे SQL database प्रोवाइड करता है। जैसे Oracle का खुद का क्लाउड है, उसमें भी SQL database प्रोवाइड होता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो वो स्टोरेज सिस्टम क्यों यूज करता है? नहीं, स्टोरेज सिस्टम तुम्हारे लिए यूज करता है। वो तुम्हारे लिए, वो अपने अंदर का एक स्टोरेज सर्विस दे रहा है। अज्योर से स्टोरेज का काम नहीं करता। क्लाउड का मतलब ये नहीं कि वो स्टोरेज का काम करे, वो नेटवर्क का काम कर सकता है, वो वीएम क्रिएट कर सकता है, वो पूरा तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट करा सकता है। बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत वास्ट चीज है क्लाउड। अगर हम उसमें जाएंगे तो एक कम से कम 4-5 घंटे का सेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात है। और मुझे पता है सब लोग चाहते हैं कि वो एक बार अज्योर को देख भी सके कि कैसा है क्या है, या किसी ने ना देखा। ठीक है, तो ब्लॉक्स क्या होते हैं? देखिए, ब्लॉक्स बेसिकली होते हैं कि मान के चलो तुम्हारा बाइनरी डेटा, जैसे तुम्हारा बाइनरी लेवल ऑब्जेक्ट कहते हैं बेसिकली ना। तो जैसे कि इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गई, तुम्हारी कोई भी CSV फाइल हो गई। ये अभी 3 एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें कि CSV फाइल, अगर किसी को CSV फाइल नहीं पता तो बता देता हूं मैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहते हैं उन्हें। SQL इज ओनली यूज्ड फॉर सिस्टम इंफॉर्मेशन स्टोरेज रादर देन स्टोरेज इटसेल्फ। करेक्ट, यस। तो मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे फाइल्स हैं, ठीक है, CSV क्या होता है कि तुम लोग ने देखा होगा ना, टेक्स्ट फाइल में कॉमा डाल दो बीच में, तो वो तरीके से अलग अलग रख, तुमको कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तुम लोग को एक एग्जांपल दिखा दूंगा मैं अभी कैसे बन के आता है वो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, फाइल्स होती हैं, जैसे तुम FTP सर्वर किसी ने सुना होगा, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एज्योर फाइल्स भी एक तरीके से वही चीज है। ठीक है, एक तरीके से बिल्कुल सेम काम। ठीक है, तो उसके बाद Azure Queues हो गया, ये मैसेजेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैसेजिंग बिटवीन 2 एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि बहुत वास्ट चीज है। हम तुम्हें प्रॉपर डिटेलिंग में सभी दे रहे हैं कि कैसे कैसे ये है, कैसे कैसे ये है, कैसे कैसे वो है। ठीक है, Azure टेबल्स क्या होती है? एक NoSQL स्टोर होता है जिसको हम कीमलेस स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। NoSQL अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, किसी को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। NoSQL क्या होता है कि जहां पर कोई भी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो डिजाइन होता है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। मतलब वो टेबल के फॉर्मेट में नहीं होगा, वो मैसेज हो सकता है। जेसॉन फाइल अगर किसी ने सुनी हो तो, जेसॉन फाइल एक स्ट्रक्चर होता है जो कीज और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, किसी ने सुना है जेसन फाइल क्या होता है? जल्दी से चार्ट बताओ, किसी ने सुना है कि जेसन फाइल क्या होता है? ओके, जिसको नहीं पता वैसे जेसन फाइल क्या होता है तो वो जा सकता है, कोई भी नेट पर सर्च करे कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है। तो जेसन फॉर्मेट में बेसिकली क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर वैल्यूज होती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर कीज और उनकी वैल्यूज ऐसे सेपरेटेड होता है। ठीक है, मतलब एक टेबल के फॉर्म में नहीं होता है। की वैल्यू पेयर हो सकता है, वो की वैल्यू मतलब कोई की जिसकी एक वैल्यू है। ठीक है, ये चीज हो गई। जैसे ए की मैंने वैल्यू दे दी 1, तो ए की हो गई और वैल्यू हो गई 1 ऐसे। ठीक है, Azure टेबल्स हो गया, Azure डिस्क, ब्लॉक लेवल स्टोरेज वॉल्यूम्स फॉर Azure VMs। पर अब इस पे तुम डिस्क लेवल स्टोरेज कर सकते हो, जो VMs हो तुम डेटा स्टोर करते हो वहां पे भी स्टोर हो सकता है। ठीक है,
अभी इतना ही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, ठीक है, वरना मैं अभी सीधा चलता हूँ, तुम लोग को जल्दी से दिखाता हूँ अजूर कैसा दिखता है। क्या सब रेडी हो अजूर देखने के लिए? पहले ये बताओ, जिसने नहीं देखा कैसा दिखता है, क्या होता है। नहीं नहीं आयुष, CSV and JSON are not related. It is something different. Okay, CSV can be used for creating like एक तरीके से JSON फॉर्मेट नो मैसेजिंग हो गया, ठीक है, मतलब वो नो SQL डेटाबेस में चला जाता है। CSV को आप SQL डेटाबेसेस में भी एक फॉर्मेटिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, जेसन फाइल एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम लोग को सिंपल एक तरीके से बता दे रहा हूँ कि जेसन फाइल कैसे फॉर्म होती, क्या होता है। कि जैसे कि मान के चलो तुमने टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट देखे हैं, मैं तुम्हें यहाँ से अभी तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई फाइल पड़ी नहीं है, बट मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ कि तुमने देखा होगा कि मैं चार्ट का तुम्हें दिखाता हूँ टाइप करके, ठीक है। तो मान के चलो ऐसे, और तुमने थोड़ा सा स्पेसिंग दी और फिर कुछ ऐसे आया, और फिर तुमने ऐसे टाइप के फॉर्मेट देखे हैं। देखो मैंने चार्ट में ड्रॉप करा है, जो मतलब ऐसे आते हैं, फिर उसके अंदर तुम हाँ करेक्ट। तो ये बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को जब यूज होता है तो उससे जेसन फॉर्मेट बनता है, ठीक है। तो ये उसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब इसमें तुम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, बहुत कुछ होता है। मैं तुम लोग को सब कुछ सजेस्ट करूंगा, अगर जेसन के बारे में और अच्छे से जानना है तो गूगल पे जाओ, कोई एक जेसन फाइल डाउनलोड करो, ठीक है, और उसको देखो, फिर वो कैसे फॉर्मेट में बनी होती है तुम लोग को और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अभी मतलब हम ज्यादा एज्योर कवर कर रहे हैं, तो हम अभी जेसन फाइल को एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट्स हो गया, बहुत कुछ है, ठीक है। तो उस पर अभी आगे बढ़ते हैं, एज्योर ही दिखाता हूँ मैं, सबसे बढ़िया है। तो मैं एज्योर देखना है, सब लोग तैयार है एज्योर देखने के लिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट चीज एज्योर पे ही जा रहा हूँ डायरेक्ट। या यू कैन से इट्स नहीं आयुष, इट्स वो डिक्शनरी हो गई, डिक्शनरी थोड़ी डिफरेंट है। तो तभी कह रहा है जेसन देखना, जेसन फॉर्मेटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, यहाँ पे सिर्फ की वैल्यू पेयर्स हो गए तुम्हारी डिक्शनरी में जैसे होता है, ठीक है। तो अजोर चलते हैं, ठीक है, सब रेडी हो? चलो 1 मिनट देना उसमें। एक मिनट देना, मैं जरा चेंज करता हूँ, मैं अजोर पे दिखाता हूँ तुम लोगों को। सब लोग को वैसे अभी तक कैसा लग रहा है, मतलब कोई बोर तो नहीं हो रहा? अच्छा चलो बताना, मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ, ठीक है। ये बताओ स्क्रीन दिख रही है? सब लोग बताओ जरा, स्क्रीन दिख रही है मेरी? गुड। तो वेलकम, ये है तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। मैं तुम्हें सारी सर्विसेज एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रही तुम्हारी सारी सर्विसेज जो प्रोवाइडेड है, वर्चुअल मशीन जैसे मैंने बोला था, फंक्शन ऐप, ठीक है। ये तुम्हारे कुबरनेटिस सर्विसेज, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है जैसे AWS में भी है, सेम है। मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, वैसे तो मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूंगा कि बेनिफिशियल, बट अगर तुम जाओगे AWS में तो वहां पे वर्डिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, यहाँ थोड़ी इजी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क है। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? एक बार बताना, अभी आ रहा है? देखो ये आ रहा है ओके ठीक है। तो बेसिकली ये है कि तुम्हारी कंप्यूट सर्विसेज है, ठीक है। कंप्यूट सर्विसेज में मैंने कहा कि जो तुम्हें कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कुछ भी रन करने के लिए, मतलब प्लेटफॉर्म ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर देती है या तुम्हें कुछ प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, कुछ भी ऐसा जो तुम्हें कोई होस्टिंग सर्विसेज के लिए, बेसिकली कंप्यूट होता है जहां आप होस्ट कर सकते हो कोई चीज, वो होस्ट करने के लिए, ठीक है। नेटवर्किंग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं तुम लोग को एक सबसे सिंपल चीज पहले चलता हूँ, सबसे सिंपल, ठीक है।
ये हाँ, ये रहा तुम्हारा एसक्यूएल डेटाबेसेस, ठीक है, जिसके बारे में मैं तुम लोग को बता रहा था। ठीक है, अब देखो इसमें एज्योर में क्या होता है कि रिसोर्स ग्रुप्स होते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एज्योर का कोई भी रिसोर्स लाई कर सकता है। हम एज्योर ग्रुप्स को ऐसे बांटते हैं कि मान के चलो तुम्हें एसक्यूएल डेटाबेस उसके अंदर चाहिए, एक ऐसा रिसोर्स ग्रुप जिसमें सारी चीजें तुम उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक पैकेज हो गया रिसोर्स ग्रुप, जिसके अंदर तुम अपना एसक्यूएल डेटाबेस भी रख रहे हो, अपना वीएम भी रख रहे हो, अपना कोई नेटवर्क भी बना के रख रहे हो, अपना कोई स्टोरेज अकाउंट भी डाल रहे हो, वो हो गया। तो अब एक काम करते हैं, हम अभी एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक, डन। हमारा एक स्टोरेज क्या है, एक रिसोर्स ग्रुप तैयार हो गया। सॉरी मैं भाई स्टोरेज हो गया था मैंने। हमारा एक रिसोर्स ग्रुप तैयार हो गया। अब हम एक सर्वर बनाएंगे। देखो सर्वर क्या होते हैं, बेसिकली सर्वर वो चीजें होती हैं जिन पे डेटाबेसेस प्रेजेंट होते हैं, जहां पर आप कोई भी डेटाबेस का वैल्यू रख सकते हैं, डेटाबेस को रख सकते हैं। सर्वर वो चीज जगह होती है, मतलब कोई भी चीज होगी, जैसे कि वीएम में भी आप एक एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वीएम में आप एक लोकल स्टोरेज में भी एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर सकते हैं, लोकल सर्वर क्रिएट करके। ठीक है, ऐसे अभी के लिए हम बस ऑथेंटिकेशन रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा पहली चीज तो क्या बना रहा हूँ, तो आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और पासवर्ड ऐसे होता है, ये आपका अब फॉर्मेट समझ लो। ठीक है, कि ये तुम्हारी लोकेशन है, तुम्हें ये बताएगा कि किस लोकेशन में प्रेजेंट है। ठीक, सब लोग देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखो जिस लोकेशन में प्रेजेंट है, तुम ईस्ट यूएस में जाकर ही सर्वर क्रिएट कर रहे हो। देखो मैंने यही कहा क्लाउड कंप्यूटिंग, तुम कहाँ बैठे हो, बन कहाँ रहा है सर्वर तुम्हारा, ईस्ट यूएस में जाकर। तो कोई एक डेटा सेंटर है या कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जहां जाकर तुम्हारा ये चीज बन रही है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब वो चीज वहां पे मैनेज हो जाएगी। ये तुमने करा, ओके करा, एक मिनट, ओह सॉरी सर्वर का नाम तो नहीं भूल गए थे। ये तुम्हारा क्रिएट हो गया एक सर्वर, स्केलार्क का एक सर्वर। ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो ऐसे हो गया, ये तुम्हारा क्रिएट हो गया। अब तुम एक डेटाबेस बना सकते हो इसके अंदर। तो एक डेटाबेस का नाम दे दो, मैं फटाफट बनाता हूँ, तुम लोग को इजी रहेगा। स्केलार्क करके डेटाबेस बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन होता है एसक्यूएल इलास्टिक पूल का। ये इलास्टिक पूल बेसिकली तब यूज करा जाता है जब मल्टीपल डेटाबेसेस है तुम्हारे पास, बहुत सारे। ठीक है, तो इलास्टिक पूल तुम्हें हेल्प करता है बेसिकली कि तुम्हारे बजट को फिक्सिंग करने में, तुम्हारे डेटा के फ्लो को इजी करने में। तो मैं तुमसे कहूंगा कि अभी के लिए इसको नो रखते हैं। ठीक है, हम जाते हैं लोकली रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज। ये लोकली रिडंडेंट इसलिए बनाया जाता है, सिंपल सी चीज है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि तुम अपने ही अंदर ही, मतलब इसी स्टोरेज के अंदर ही तुम 2 बार डेटा को और रेप्लिकेट कर रहे हो। सब लोग ने रिडंडेंसी का मतलब समझते हो? रिडंडेंसी कोई समझते है? रिडंडेंसी का मतलब बताना जरा चैट में, अगर किसी को पता है रिडंडेंसी क्या होता है। गुड 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 गुड, यस। तो देखो रिडंडेंसी बेसिकली क्या होता है कि जहां पर एक डुप्लीकेसी क्रिएट होती है। ठीक है, तुम लोग एग्जाम में भी रिडंडेंसी तो करते ही होगे, सब लोग करते हैं। एक कॉपी से दूसरी कॉपी रिडंडेंट हो ही जाती है आखिरी में जा जाकर। रेपिटेशन ऑफ डेटा होता ही है, एग्जाम में भी रेपिटेशन ऑफ डेटा ही हो रहा है। ठीक है, सब बहुत लोग करते हैं, मतलब ऐसे बता रहा हूँ मैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग भी करते थे यार। ठीक है, तो एक तरीके से वही है कि तुमने डेटा जहां से उठाया उसका एक रेपिटेटिव डेटा क्रिएट कर दिया है, तो रेप्लिकेशन क्रिएट हो जाता है। अब मैं एक एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, बट एक प्रॉपर तुम्हें अभी देखो इनिशियलाइज कर रहा है वो डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये ऐसे एक फ्लो है, तुम कैसे एक एसक्यूएल डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया तुम लोगों को? मैं तुम्हें आखिरी में ये भी बताऊंगा कि एज्योर पे एक अकाउंट कैसे बनाना है, वो भी फ्री टियर का, जिसमें तुम्हें 1 रुपया नहीं देना होता। ठीक है, 1 रुपया नहीं लगेगा तुम्हारा, और 1 महीने तक तुम प्रॉपर हर सर्विस को यूज कर सकोगे एक मिनिमम इनपुट के द्वारा। मतलब बहुत ज्यादा नहीं सर्विसेज में प्रोवाइड करता फ्री टियर, बट इतना देता है कि तुम अपनी प्रैक्टिस क्रिएट कर सकते हो।
तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पैसा भरना पड़ेगा क्या यार मुझे ये, जब तक तुम पे एज यू गो नहीं खरीदते। इसमें एक ऑप्शन होता है पे एज यू गो का, वो नहीं खरीदोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, अभी की बेसिकली ये डिप्लॉय हो रहा है, तो ये मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है इसे, ये डिप्लॉय होता है और तुम्हारा पूरा पूरा सर्वर के साथ तुम्हारा पूरा डेटाबेस सब रेडी करके तुम्हें दे देगा। ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अभी जब तक ये डिप्लॉय होता है मैं तुम्हें एक और चीज सिखाता हूँ। ठीक है, ये आ गए तुम स्टोरेज अकाउंट से, जिसके बारे में अभी तुम्हें मैंने बताया था, अजूर स्टोरेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक अजूर स्टोरेज क्रिएट करूंगा। नहीं, जैसे कि स्केलार्क वाला मैंने लिया। ठीक है, हम इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर सब रखेंगे, बिकॉज हमने अभी एसक्यूएल डेटाबेस जो बनाया था वो कहाँ बनाया था, स्केलार्क के रिसोर्स ग्रुप में। ठीक है, स्टोरेज का अकाउंट नेम में डाल रहा हूँ अभी, स्केलार्क स्टोरेज। ठीक है, हम इसको भी ईस्ट यूएस में रख रहे हैं अभी के लिए। ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जनरल पर्पस के लिए है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत हम प्रीमियम वो नहीं रखेंगे कि हमें बहुत ज्यादा वो चाहिए, हम इसको लोकली रिडंडेंसी पे रखेंगे। ठीक है, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज पे रखेंगे, बिकॉज कि हम चाहते हैं कि हमारा जो रेप्लिकेशन हो वो हमारे सिस्टम में हो, और हम बाहर आउट प्लेटफॉर्म में नहीं डालना चाहते। इसमें और भी होते हैं, जियो रिडंडेंट मतलब बहुत अलग अलग रीजन में जाके डिप्लॉय कर सकता है, जोन रिडंडेंट मतलब एक पर्टिकुलर जोन में जाके डिप्लॉय करता है, और जियो जोन रिडंडेंट होता है जो जियोग्राफिकली किसी भी जोन में जाकर उसको रिडंडेंसी क्रिएट कर सकता है। ये हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ जरूरत नहीं है। अब हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। तुम लोग को समझ तो आ रहा है ना कि ये क्या चीज सर बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं, ये तो नहीं लग रहा तुम लोग क्या बना रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। बताओ, मतलब कुछ ऐसा है तुम लोग को लग रहा है क्या बना रहे हैं? अरे चैट में बता दो यार। चलो बढ़िया बढ़िया, मतलब क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं हमारा एसक्यूएल डेटाबेस बन गया है या नहीं। तो अभी भी वो क्रिएट हो रहा है। ओके, एक मिनट। देखो बन गया। ठीक है, ये रहा। हाँ देखो, हाँ कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना, जैसे विनय ने बताया है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये रहा तुम्हारा डेटाबेस। अब हम चलते हैं सबसे पहली चीज पे, क्वेरी एडिटर। ठीक है, अभी मैं तुम लोग एक चीज बता रहा हूँ, जब तुम पहली बार इस चीज को बनाओगे, मैंने ओके करा पासवर्ड डाल के। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अब ये आ रहा है कि यार मेरा सर्वर तो लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मुझे अब इसे व्हाइट लिस्ट करना है, मतलब इसकी फायरवॉल को मुझे तोड़ के इसको अलाउ करना है। अब मैंने अपडेट कर दी फायरवॉल सेटिंग्स को, 2 मिनट लगता है फायरवॉल सेटिंग्स अपडेट हो जाती है, मैं फिर ओके दबाऊंगा और अब मैं आ चुका हूं इसके अंदर। ये रहा तुम्हारा पर्टिकुलर जहां पे तुम अपनी एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो। ठीक, बनाएंगे किस पे, मतलब शिवांगी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आप थोड़ा बता सकते हो, थोड़ा इलाबोरेट करके आप किस चीज के बारे में कह रहे हैं बेटा? ओके, जब तक शिवांगी बता रही है इसका क्वेश्चन, मैं तब तक एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो हम एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए। ठीक है, सर्वर के अंदर डेटाबेस क्रिएट होता है, और डेटाबेस के अंदर जाकर आप एक क्वेरी लिख के एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरी अब एक टेबल क्रिएट होने वाली है। ठीक, पीपल नाम की। अब ये उसका एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, सिंटेक्स, सिंटेक्स समझते हो, मतलब जिस चीज को आप किसी भी फॉर्मेट पे कैसे लिखते हो। क्रिएट टेबल पीपल, अब जैसे मैंने लिख दिया आईडी, और इसमें स्ट्रिंग नहीं यूज होता, इसमें यूज होता है varchar। ठीक,
मैंने दे दिया varchar और आईडी को मैंने साइज दे दिया मान के चलो 4, ठीक है। मैं अभी के लिए varchar दे रहा हूँ, आप char भी दे सकते हैं। आप ये किस माइक्रोसॉफ्ट ऐप का यूज कर रहे हो, उसका नेम क्या है? बेटा मैं अजूर पढ़ा रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर का यूज कर रहा हूँ और उसमें अजूर एसक्यूएल डेटाबेस है जिसमें आप जा सकते हो। तो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जाकर आपको वो पता चल जाएगा कि आपको कैसे बनाना है। मैंने अभी आपको जो बताया पूरा, हाँ अजूर अकाउंट है, करेक्ट, अजूर, इट इज अजूर, ठीक। ये हो गया आईडी और अब मैं दे रहा हूँ नेम, ठीक। तो नेम में मैंने डाला varchar और दिया, ठीक। अब नाम वो कितना भी बढ़ा सकता है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा एक टेबल का। अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक, अब देखना एक टेबल क्रिएट हो गई, उसका नाम है behavior.people। उसमें 2 कॉलम्स आ गए, आईडी और नेम। अब मैं चाहूं तो इसमें डेटा भी इंसर्ट कर सकता हूं, ठीक। मैं तुम लोग को बहुत बेसिक बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूज हो, ठीक है। बाय बाय, ठीक। मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ इंसर्ट इनटू का मतलब क्या है, ठीक। इंसर्ट इनटू एक ऐसी चीज होती है जिससे आप किसी टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। सब आईडी और कॉलम तो भाई अभी कुछ नहीं है। मतलब मैं अगर तुम्हें एक चीज दिखाऊं, सिलेक्ट करूं, मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, स्टार को यूज इसलिए करते हैं कि सब कुछ, हम सब कुछ उस टेबल से निकाल सकें, सारे कॉलम सारे रोज, ठीक है, स्टार यूज करते हैं। पीपल, अगर मैं इसको dba.people भी लिख सकते हैं, पीपल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं dba.people लिखता हूँ, डेटा बेस का एक पार्ट है जिसका नाम पीपल है, ठीक, एक टेबल है पीपल। अब मैं इसको रन करता हूँ, कुछ भी नहीं मिला मुझे क्योंकि ये अभी खाली है, ठीक है, ये अभी खाली है। अब मैं इसमें एक वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैंने डाला 1, ठीक है, मैंने आईडी डाली 1 और मैंने नाम डाला, अपना ही डाल दिया, ठीक है। मैंने ये 2 चीजें डाली। सिंगल कोट यूज करे जाते हैं किसी भी स्ट्रिंग टाइप को डिफाइन करने के लिए। मैं चाहे तो उस आईडी को इंटीजर भी रख सकता था, बट मैंने सोचा तुम लोग को varchar भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसी बहाने, तो varchar रखा है। varchar 4 का मतलब है कि मैं इस स्ट्रिंग का साइज 4 से ऊपर नहीं ले जा सकता। मतलब 1000 हो सकता है, 9999 हो सकता है, पर 10,000 नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद नेम varchar 100 का मतलब ये है कि मैं इसकी लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, उसको मैं 100 के ऊपर नहीं, मतलब 100 वर्ड का नाम हो गया कोई भी बहुत लंबा, 100 लेटर का नाम हो गया कोई भी बहुत लंबा था, तो मैं उस चीज को 101 लेटर का नहीं ले जा पाऊंगा। मतलब स्पेस को भी, स्पेशल कैरेक्टर या कुछ भी हो, वो सब इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको इंसर्ट करता हूं, अब एक रो इफेक्ट दिखा रहा है, देखो आ गई आईडी 1, नेम सिद्धांत। सब समझ में आया तुम लोगों को? ये मैं चीज तुम लोग को चार्ट में डाल देता हूं कि तुम लोग जाओ और एक बार खुद टेस्ट करना, ठीक है। अभी चार्ट ठीक, अपने हिसाब से जाके टेस्ट कर लेना एक बार, तुम लोगों को भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया मैंने जो बताया अभी कि ये एसक्यूएल कैसे रन करता है, क्यों होता है, इसलिए होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है अभी एसक्यूएल का, ठीक है। मैं तुम्हें एक और चीज दिखा सकता हूँ, देखो। अब मान के चलो मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैंने इस चीज को कॉपी करा या पेस्ट करा, मैंने इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया सिद्धांत स्पेस कपूर, ठीक। 2 वैल्यूज हो गई, ठीक। अब मैं इसको भी इंसर्ट करता हूँ, ठीक। अब एक और रो इंसर्ट हुई है और मैं तुम्हें सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, 2 आइटम्स आ गए, ठीक। सिंपल, बहुत सिंपल चीज तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2 आइटम्स आ गए, ठीक। अब देखो अगर मैं क्वेरी को थोड़ा चेंज करूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम behavior.people वेयर, ठीक, वेयर नेम इक्वल्स, मैं अगर ये नाम उठा के डाल दूं तो मुझे बताओ ये क्वेरी क्या देगी? कोई मुझे बता सकता है कि ये चीज अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये पर्टिकुलर लाइन, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे आईडी 1 का रिजल्ट मिलेगा या आईडी 2 का रिजल्ट मिलेगा, या मुझे दोनों मिलेंगे? चार्ट में जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई है जहां नाम सिद्धांत कपूर होना चाहिए, तो वो चीज
मुझे ID2 और ये सब करके देगा। अगर अब मैं यहाँ स्टार हटा दूं और मैं सिर्फ इतना लिखूं तो मुझे कोई बता सकता है कि आउटपुट क्या आएगा? गुड, ओनली ID, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, तो आ जाएगा तुम्हारा ये सेम चीज वही है। अगर मैं यहाँ पर नेम लिख दूं तो उससे आएगा मेरे को नहीं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ऐसे वर्क करती है, बहुत सिंपल टर्म्स में मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। ये होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सब लोग को समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड। कोई ऐसा है जो बोर हो रहा हो कि यार ये तो सर बहुत बेसिक चीज ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो सब लोग जानते ही हैं, क्या मतलब हम भी स्टूडेंट है यार, हम जानते हैं बच्चे कैसा फील करते हैं इसी से पूछ रहा हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर तुम लोग इंटरेस्ट लेके कर रहे हो और जरूर करो, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का। अब हम आते हैं, बाय बाय बोलते हैं इसे, ठीक है। एसक्यूएल मैंने तुम लोगों को समझा दिया। मैंने अभी एक और चीज क्रिएट करी थी, वो था स्टोरेज अकाउंट। सबने देखा मैंने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करा था, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सब एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएटेड है। अब जो मैंने तुम्हें बताया था, तो मैंने ब्लॉक पढ़ाया था, याद है? ब्लॉक प्रेजेंट है ना? सब देख रहे हो? मैं सब प्रैक्टिकली देख के समझ आना चाहिए। ओके, थैंक यू चौहान। ब्लॉब देखा? ब्लॉब, ठीक, ब्लॉब बताया था, फाइल सर्विस बताई थी, क्यू सर्विस बताई थी, और टेबल जिसमें मैंने बताया था कि एक FTP पे चलता है, सिर्फ उसमें फाइल डाल सकते हो, इसमें तुम इमेज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, और CSV डाल सकते हो, बहुत कुछ डाल सकते हो। इसमें तुम्हारा मैसेजिंग फॉर्मेट में, मतलब मैसेजेस जो दो एप्लीकेशन के बीच में होते हैं वो आता है। और ये क्या करता है, तुम्हारा NoSQL टाइप के क्वेरीज को या NoSQL डेटाबेसेस को स्टोर कर सकता है, NoSQL टेबल्स को बेसिकली एक पार्टीशन और की के थ्रू स्टोर करता है, ठीक है। पार्टीशन और की क्या होती है वो सब बाद में देखेंगे, बहुत टर्मिनोलॉजी है, अभी आप लोग बहुत स्टार्टिंग में, तो मैं इतना नहीं जाऊंगा, बस इतना समझाऊंगा कि ब्लॉक सर्विस में कैसे काम होता है, ठीक। ब्लॉक सर्विस में आप कंटेनर्स क्रिएट करते हो, ठीक है। आपने जैसे कहा कि मुझे कंटेनर क्रिएट करना है स्किलार्क का, ठीक, ये मेरा कंटेनर है, ठीक, ये मैंने क्रिएट करा और ये रहा स्किलार्क का, ठीक। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम चाहे तो एक फाइल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तुम चाहे तो अभी तो जैसे कि मैंने अपलोड पे क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पर अपनी फाइल्स में जाकर तुम चाहे तो, मैं कोई भी फाइल डाल देता हूँ तुम लोग के लिए, तुम्हें इजी रहेगा, .csv करके बोल जाए मेरे तो और बेटर है। चलो मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ अभी के लिए, ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ओपन करा, ठीक है, ये .java की फाइल है, ठीक। और ओवरराइट इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब है अगर पहले से ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो उसे ओवरराइट कर देगा, मतलब नया डेटा अगर है इसके अंदर तो नया डेटा डाल देगा और तुम सीधा अपलोड कर सकते हो, ठीक। अब तुम्हें एक और चीज समझाता हूं मैं, ये हॉट इन्फर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक। किसी को आइडिया है, मतलब कभी किसी ने सुना है एक्सेस टीयर्स क्या होते हैं? किसी ने भी कभी सुना है कि एक्सेस टीयर क्या होते हैं? कभी भी लाइफ में कहीं भी कि एक्सेस टीयर का मतलब क्या हो सकता है, ये क्या चीज है, ऐसा क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ब्लॉक स्टोरेज में? कभी नहीं सुना होगा ना? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्सेस टीयर्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा बिल्कुल फ्रेश डेटा है, तुम इस स्टोरेज को बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, इस डेटा को बहुत ही ज्यादा यूज करते हो, बहुत ही लेवल पे यूज करते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि मान के चलो जैसे तुम्हारा सबसे फ्रीक्वेंट डेटा जो यूज करते हो, मान के चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, भाई मैंने एक किताब लिखी जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है और वो मैंने आज ही लिखी, तो वो हो गया हॉट, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज मैं उसी किताब को करता हूँ। उसके बाद कोई ऐसी किताब है जो पिछले 30 दिन से पढ़ी है, मैं कभी कभार देख लेता हूँ, मन करता है तो, ठीक है, कभी कभार देख लेता हूँ, मन करता है तो बहुत कम यूज होती है, 30 दिन के ऊपर से पड़ी हुई है, बस मेरा इतना यूज का नहीं है, मेरे पास फ्रेश डेटा ऑलरेडी हॉट में प्रेजेंट है, तो वो होता है कूल हॉट। एक आता है कूल, मैं लिख देता हूँ साथ में, एक होता है हॉट, एक होता है कूल, ठीक, और एक होता है लास्ट आर्काइव। जब कोई भी फाइल इतनी बेकार हो चुकी हो जिसका आपको कुछ काम नहीं हो, वो एक आर्काइव में चली जाती है। हॉट और कूल
ऑनलाइन रहते हैं, बट आर्काइव जो होता है वो ऑफलाइन होता है। मतलब वो आपके सिस्टम में नहीं होगा, वो चला गया, वो गायब है, वो छुप गया कहीं जाकर। आर्काइव करने का मतलब समझते हो ना, कि वो चीज दिखती नहीं है सामने से, तुम्हें जाके ढूंढ के लानी पड़ती है वापस, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे तुम मेल्स में भी देखते हो, फ्रेश मेल होती है और एक होती है जिसको तुम आर्काइव कर सकते हो। तो जो आर्काइव करते हो मतलब क्यों करते हो भाई, अब मुझे इसका काम तो है नहीं, मैंने इसको आर्काइव कर दिया। हॉट मेल्स क्या होगी, जैसे कि तुम्हारी टॉप पे जो मेल्स आ रही है, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंटली, जिनको तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हो। ठीक, हाइड करना, बिल्कुल सही, हाइड करना कैसे। हाँ, yes, it is like hot is the most frequently used file. Cool is the file that is not frequently used but in use, and archives are something that are not used at all. But if you want to go and fetch them, you can. बिल्कुल जैसे कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो वाली चीज है। तो ये हो गया हॉट, वो और ये। ठीक है, अब देखो अगर मैं फाइल में खोलता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग बहुत अलग टाइप की होती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये देखो, तुम व्यू एडिट करके जाकर फाइल के अंदर कंपोनेंट देख सकते हो कि फाइल में क्या है। अभी कोड में मत जाओ, ठीक है, जावा कोड है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये फाइल की कंपोनेंट्स है, इनको आप चेंज कर सकते हो और फिर सेव कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो मैंने यार टेस्टिंग हटा दिया, तो मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक, तो ये सेव हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ऐसे काम करता है। सब लोगों को क्लियर है? मतलब बहुत बेसिक तरीके से मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, वो इतना वो नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है, इसमें तो समझ नहीं आ सकता है। अभी बहुत बेसिक चल रहे हैं हम लोग, तो ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो? मैं तुम लोग को क्या छोड़ रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं बता सकता हूँ, अगर तुम ना चाहो तो कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो अभी मेरे साथ? कूल कूल कूल, ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम सेम जैसे उस ग्रुप में इसको बना देंगे। हम रीजन इसका ईस्ट यूएसए रखते हैं, नाम कुछ भी डाल दो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हम इसको क्रिएट करेंगे। ओ सॉरी, हाँ गिट वर्जनिंग, हाँ सुनो सुनो, हाँ यहाँ पर जब आओगे तो डेटा फैक्ट्री जब क्रिएट करते हो, डेटा फैक्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, डेटा फैक्ट्रीज क्यों यूज होती है? बेसिकली किसी भी टाइप के डेटा को किसी भी जगह से उठा के कहीं और भेजने के लिए, किसी भी टाइप के डेटा को किसी और फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं तुम्हें एसक्यूएल डेटाबेस के एक टेबल को सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करके भी दिखा सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डेटा फैक्ट्री के थ्रू। ठीक है, ये पॉसिबल है, और इसमें कोई कोडिंग नहीं है, कोई अलग थ्योरी नहीं है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अभी यहाँ के लिए हम कॉन्फ़िगर गिट लेटर कर दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी गिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा और हम लोग के पास भी इतना टाइम नहीं कि हम उस चीज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, मैं बहुत क्विक तरीके से बस तुम लोग को बताऊंगा क्या होता है। मैं अभी करके नहीं दिखा सकता पूरा, क्योंकि अगर मैं करने पे आ गया तो ये बहुत टाइम टेकिंग है और फिर आधे ज्यादा लोग हो सकता है बोर भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी पेशेंस के गेम है, ये सब पेशेंस का गेम है। मैं तुम लोग डेटा फैक्ट्री दिखती कैसी अंदर से मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, 2 मिनट लगेगा बस। ठीक है, वैलिडेशन पास हो गया। देखो ये वैलिडेट करता है कि तुमने जितना भी कुछ क्रिएट करा है, तुमने जो टर्म्स क्रिएट करे, तुमने जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, नेटवर्क्स होने चाहिए, वो प्रॉपर है या नहीं। अगर वैलिडेशन प्रॉपर होता है तो पास कर देता है और तुम उस रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो तुम नहीं क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, जब तक ये होता है मैं तुम लोग को एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, तब तक ये हो रहा है। ठीक है, देखो यार, सब अब सोच रहे होंगे सर ने एज्योर तो बता दिया, एज्योर क्या है, एज्योर किस लिए है, एज्योर क्यों है, वगैरह 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 वगैरह। तो मैं तुम लोग को एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। ठीक है, सबसे बेसिक सी चीज कि एज्योर हमें कैसे हेल्प कर सकता है करियर ग्रोथ में। इस समय वर्ल्ड में एज्योर की डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे AWS की है, सेम एज्योर की है। मैं खुद एक एज्योर डेटा इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि एज्योर की कितनी वैल्यू है इस समय। इस समय कोई पर्टिकुलर, कोई भी बेसिक इंसान अगर एज्योर सीख कर एक जॉब पाने जाता है तो मैं तुम्हें गारंटी कहता हूँ तो 10 से 15 लाख की जॉब लगती है। ठीक है, मैं जानता हूँ 10 से 15 लाख लगती है। जो एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, उसकी पे 25 से 30 लाख होती है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आप 3 से 4 साल में भी बन सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट थिंग, 2 साल में भी बन सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एज्योर को ग्रास्प करते हो। ठीक है,
सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वो इंसान होता है जिसको अज्योर का ए से लेकर जेड तक सब पता है। उसे पता है कि भाई मुझे यहाँ से ये सर्विस उठानी है, मैं इसमें लगाऊंगा, पूरा आर्किटेक्चर क्रिएट करके दे सकता हूँ। वो तुम्हें बताएगा कि पूरा चीज कैसे क्रिएट करते हैं। अज्योर का ये चीज है। अज्योर के और क्या स्कोप है? बेसिकली यूएस में बहुत स्कोप है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी बहुत है, ठीक है। इंडिया में आपको ऐसी कंपनी, सबसे पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट खुद अज्योर यूज करती है क्योंकि वो उन्हीं का प्रोडक्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट में हैदराबाद में है, बैंगलोर में आपको ऑफिस है वहां पर। तो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब्स, अगर आप जैसे कि पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद जाते हैं अज्योर के साथ, सिर्फ अज्योर के साथ, तो आप अगर बेसिक नॉलेज देके कोई कंपनी में जाते हैं, आपको अज्योर का प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपको पता है कि आपको अज्योर कैसे यूज करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी कंपनी है जो आपको अज्योर के टर्म्स पे उठा सकती है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेरी बिग कंपनी, ठीक। सेकेंडली, मैं खुद बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। किसी ने न्यू बैलेंस का नाम सुना है? न्यू बैलेंस कंपनी का अगर किसी ने सुना है तो वो चार्ट में बताओ। न्यू बैलेंस का नाम सुना है? ओके, तो मैं बताता हूँ। हाँ, एनबी, करेक्ट आंसर, एनबी। एक लिवरपूल करके क्लब है, ठीक है, उसको स्पॉन्सर करता है। ये एक कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे शू ब्रांड है, बहुत बड़ा शू ब्रांड है, ठीक है। शूज है और बहुत स्पोर्ट्स वेयर का ब्रांड है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये कंपनी में भी अज्योर का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आई गेस सबने पता होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मैं खुद इसका इंटरव्यू दे चुका हूँ। आई गेस मैं सबको वैसे क्लियर करता हूँ, मैं इसका इंटरव्यू दे रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। मैं इस प्रोग्रेस में हूँ अभी, मैंने एक राउंड क्लियर कर लिया है और इनको अज्योर डेटा इंजीनियर की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने चेक करा, मैंने सर्वे निकाला, तो अगर तुम कुछ एक्सपीरियंस के बाद, हाँ बिल्कुल सही बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, रिपीट बैक। तो तुम इस चीज को देखो, मतलब न्यू बैलेंस, वो सब लोग ज्यादातर एनबी के नाम से जानते हैं, उसका फुल फॉर्म न्यू बैलेंस है। न्यू बैलेंस अब इंडिया में भी काम करना शुरू कर चुका है, उनका मेन सेंटर पुणे में है, ठीक है। तो वो भी अज्योर डेटा इंजीनियर चाहते हैं। और तुम्हारी सर्विस बेस्ड कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर वगैरह वगैरह, या ये सब अज्योर का काम करते हैं। सबके सब, कोई ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया में जो अज्योर या कोई भी क्लाउड टेक्निक ना यूज करता, ठीक है। आजकल हर बंदे को क्लाउड पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, यहाँ तक कि बैंक भी क्लाउड पे जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, तुम लोग समझ गए, ठीक है। तो बेसिकली कितना वास्ट है इस चीज को समझो कि अज्योर तुम्हें कहां से कहां तक ले जा सकता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सिंपल है, हर चीज बहुत सिंपल है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारी सिक्योरिटी का लॉस है, क्योंकि सब कुछ तुम्हें यही प्रोवाइड करते हैं। ये तुम्हारी सिक्योरिटी कभी नहीं डाउन होने देते हैं, कभी नहीं। मैं तो बताऊँ 99.99% चांसेस नहीं ही होगा। 0.01 तो भाई सब लगे जाते, कोई किसी पे 100% विश्वास भी नहीं रखता है। 99.99% ही रखता है, क्योंकि आज का जमाना भी ऐसा ही है, ठीक है। तो हम भी यही कहेंगे कि 99.99% एज़्योर तुम्हें पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हर रिसोर्स प्रोवाइड करता है। एडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है उसका वो, ठीक है। आज के मार्केट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एडब्ल्यूएस का जो है, क्योंकि एडब्ल्यूएस फॉर्मली रिफॉर्म था, ठीक है, वो बहुत पहले से था और वो कॉम्पिटिशन मार्केट में था। अगर किसी को पता हो कि सबसे बड़ी क्लाउड किसने पहले क्रिएट करी थी, तो क्लाउड एरा का नाम सुना किसी ने? यस, करेक्ट करेक्ट आयुष, बैंक शुड क्रिएट। यार देखो, मैं तन्मय में यहाँ पर किसी को वो नहीं करूंगा कि पैकेज उसका हायर है क्या है। एज़्योर का पैकेज अगर तुम इंटरनेशनल पैकेज देखो तो बहुत है, 6+ फिगर्स में है। 6+ फिगर डॉलर बहुत होता है। और वही चीज एडब्ल्यूएस है, 6+ फिगर्स तो तुम लोग समझ जाओ, लाखों डॉलर लिटरली, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज है कि अज्योर किस में यूज होता है, कहां पर यूज होता है। मैंने तो बेसिक आइडिया दे दी है कि अज्योर वो जगह यूज होता है जहां पर हर क्लाउड कंप्यूटिंग काम करती है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडियाज है, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को एक सजेशन देता हूँ, मैं तुम लोग को डेटा फैक्ट्री ऊपर ऊपर से दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर एक असेसमेंट क्विज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये टेस्टिंग करेंगे कि लोगों को इतना समझ में आया। तो मैं तुम लोग को बस ऊपर ऊपर से 2 मिनट के अंदर अज्योर डेटा फैक्ट्री दिखा देता हूँ। सब लोगों को मजा तो आई ना अज्योर के बारे में जानने में, अज्योर क्या है, क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं, पैकेजेस अच्छे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, पैकेज बहुत अच्छे होते हैं इसमें, ठीक है। तुम्हें सीखने को बहुत मिलता है। अभी तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, मतलब मैं इतनी सर्विसेज है कि मैं अभी दिखा भी नहीं सकता। ये कम से कम 4-5 दिन लग जाएगा इसको, 4-5 दिन और ज्यादा लग जाएगा। जैसे AWS में बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत टाइम लगता है,
ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑथर होता है। डेटा फैक्ट्री हमेशा अलग से है, तुम इस पर क्लिक करोगे तो वापस अज्योर पे वापस नहीं जा पाओगे। ठीक है, तुम्हें दूसरा टैब में ही रहना पड़ेगा। इसमें पाइपलाइन होती है, डेटा सेट होते हैं, डेटा फ्लोस होते हैं, पावर क्वेरी होती है। मैं अभी इन दोनों में नहीं जाऊंगा ज्यादा। पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन एक ऐसी चीज होती है जिसको तुम एग्जीक्यूट करके कोई एक आउटपुट निकाल सको। इसके अंदर तुम्हारे बेसिकली मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक पाइपलाइन क्रिएट कर दिया, ठीक। ये पाइपलाइन है। अब इसके अंदर एक्टिविटीज होती है, मतलब मुझे डेटा को कॉपी करना है तो मैं कॉपी डेटा यूज करता हूँ। मुझे अगर मान के चलो तुम लोग को बहुत सिंपल सा बताता हूँ मैं। अगर किसी चीज को डिलीट करना है तो मैं डिलीट का यूज कर सकता हूँ। कोई मुझे ऐसी पाइपलाइन जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उससे एग्जीक्यूट करना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं तुम्हें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ। कॉपी डेटा क्या करता है? एक सोर्स को लेता है और एक सिंक को लेता है, ठीक। सोर्स मतलब जहां से तुम्हें चीज मान के चलो तुमने एसक्यूएल डेटाबेस का सोर्स लिया और तुमने सिंक ले लिया किस चीज का? ब्लॉक स्टोरेज का। तो तुम यहां से उठा के एक टेबल फॉर्मेट, रो और कॉलम को तुम एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जिसमें होता है थैंक यू आकिब, थैंक यू, तो उसमें होता है तो उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आप सिंक कर सकते हो, मतलब तुमने एसक्यूएल से उठाया और सीधा ब्लॉक स्टोरेज में डाल दिया। तुम्हें कोई कोड नहीं लिखने की जरूरत है, तुम्हें हर एक 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 स्टेप तुम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम इसके ऊपर पूरा एक अलग से कोर्स भी निकालने वाले हैं अज्योर के ऊपर। प्रॉपर अलग से कोर्स होगा जिसमें अज्योर डेटा फैक्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा यूसेज दिखाई देगा, क्योंकि अज्योर डेटा फैक्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज्यादा यूज, मतलब बेसिकली बहुत ही ज्यादा यूसेज है क्योंकि इसमें डेटा है। एंड आज वत्सल टोल्ड यू एट द स्टार्ट कि डेटा इज एवरीथिंग, एंड एक्चुअली डेटा इज एवरीथिंग। डेटा है तो दुनिया में तो लोग बचे हुए हैं अगर उनका डेटा प्राइवेट है तो। कहीं डेटा एक्सपोज हो गया तो बहुत लोग का बहुत इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, ठीक है। तो बेसिकली कॉपी डेटा ये है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। इसमें होता है ट्रिगर्स, ठीक है। ट्रिगर्स जैसे तुमने कोई पाइपलाइन क्रिएट कर लिया, पाइपलाइन तो सब लोग समझ गए ना। एक बार बताओ, मतलब कुछ नहीं यार, उसमें एक्टिविटीज अटैच कर दो तो वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर देता है, वो होता है पाइपलाइन, ठीक है। समझ में आया ना सबको पाइपलाइन क्या है? ओके, ठीक है, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मान के चलो ये सब है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम ट्रिगर्स पे आते हैं। देखो ट्रिगर क्या होते हैं, जैसे मान के चलो मेरे को एक नया ट्रिगर बनाया मैंने, ठीक है। वो इतने टाइप के होते हैं, शेड्यूल, टम्बलिंग, स्टोरेज इवेंट्स और कस्टम इवेंट्स, ठीक है। स्टोरेज इवेंट्स और कस्टम इवेंट्स एक ही होते हैं जिनको कहते हैं इवेंट बेस्ड ट्रिगर्स, ठीक है। इनको इवेंट बेस्ड भी कहते हैं। इनको अलग अलग मत समझना कि तरीके अलग अलग है बस इनके, ठीक है, पर होते हैं ये है इवेंट बेस्ड, एक सॉरी, हाँ, ये होते हैं इवेंट बेस्ड ट्रिगर्स, ठीक है। तुम्हारा शेड्यूल ट्रिगर होता है और बता तुम्हारा टम्बलिंग विंडो। ये मोस्ट कॉमनली यूज ट्रिगर्स हैं जो मार्केट में यूज करे जाते हैं। शेड्यूल ट्रिगर क्या करता है बेसिकली कि मान के चलो मैंने शेड्यूल चूज करा, तो भाई देखो मुझे आज के लिए चाहिए और मैं चाहता हूं कि अभी शुरू हो और हर हर हफ्ते में, ठीक है, एक बार हो, कितने बजे कितने घंटे सब तुम यहाँ मेंशन कर सकते हो। संडे को हो इतने घंटे पे इतने बजे और एक ट्रिगर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं तब एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। फिर आता है तुम्हारा टम्बलिंग विंडो, ठीक है। तो टम्बलिंग विंडो में क्या होता है कि जैसे मान के चलो तुम्हारा ये स्टार्ट डेट है, ठीक, ये तुम्हारा अक्रेंस सिर्फ मिनट्स और आवर्स के लिए होता है। टम्बलिंग विंडो का काम होता है कि अगर तुम्हें एक दिन में 2 घंटे के लिए कोई पाइपलाइन को ट्रिगर करना है, ट्रिगर करना मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करना। जैसे मान के चलो मम्मी कहती है बेटा जाके पढ़ो, मम्मी आके तुम्हें ट्रिगर कर रही है जाके पढ़ो 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 पढ़ो। मम्मी ने कहा कि तुम्हें हर 2 घंटे में पढ़ना ही है, तो तुम्हारा एक ट्रिगर सेट है कि भाई मम्मी ने अगर बोला है तो करना है वरना मम्मी डांटेगी, ठीक है। करना तो करना है, ठीक है, 2 घंटे में तुम्हें करना है। तो मम्मी ने कहा जाओ अपना टाइमर सेट करो 2 घंटे में, हर 2 घंटे में मुझे तुम पढ़ते दिखने चाहिए। तो जाओगे रिमाइंडर टाइप, हाँ, मतलब एक तरीके से वो पाइपलाइन को रिमाइंड कराता है कि अब तुम्हें एग्जीक्यूट होना है, बिल्कुल सही, हाँ ऐसे ही। मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में समझो तो कुछ नहीं है। टम्बलिंग विंडो का मतलब पता है, छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से वो टाइम को एग्जीक्यूट करेगा। शेड्यूल का तो वो छोटे से लॉन्ग इंटरवल्स तक डिफरेंशिएट करके एग्जीक्यूट करता है। इवेंट बेस्ड का मतलब जैसे होता है, मान के चलो कि तुम्हारे पास एक फाइल है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, मान के चलो वो अपडेट हो रही है, वो डिलीट हो रही है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा।
अकॉर्डिंग टू द इवेंट। अगर मैंने कहा कि मुझे स्टोरेज के इवेंट चाहिए, मतलब कैसे, वो भी मैं अब बता नहीं पाऊंगा, बहुत सारी डिटेलिंग भरनी पड़ती है, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए अगर मैंने माना कि ये स्टोरेज अकाउंट है, अगर इसमें ये कंटेनर है, अगर कुछ भी इसमें क्रिएट होता है, जैसे मान के चलने का कि अगर ये क्रिएट हो रहा है ब्लॉक, ठीक है, तो एक नया ब्लॉक अगर क्रिएट होता है तो वो ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। अगर ये ब्लॉक डिलीट होता है और या क्रिएट होता है तो भी ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट करेगी। तो इवेंट मतलब कोई चीज हो रही है, इसकी वजह से मेरा एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये होता है इवेंट बेस्ड इवेंट, ठीक है। तो यहां पर हम इतना ही बता रहे हैं कि हम इसको क्लोज करते हैं। तो और सबसे मेन चीज, कोई भी पाइपलाइन बनाने के बाद उसको पब्लिश कर देना। मैं भी पब्लिश करूंगा तेरे थ्रू करेगा, क्योंकि पाइपलाइन मैंने पूरी तरह क्रिएट नहीं करी है। ये एक्टिविटीज आप डिफरेंट यूज कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटी है। सबसे सिंपल चीज है, अभी जाओ इस प्रोग्राम के बाद, इस वर्कशॉप के बाद जाओ, ठीक है, जाके सर्च करो हाउ टू क्रिएट अ फ्री एज्योर अकाउंट। सिंपल सा है, तुम जाओगे, तुम्हें अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी एक, ठीक है। आईडी क्रिएट करोगे, जाओगे, वहां पर लिखा होगा स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, ठीक है। जो तुम्हारा यूआई है, यूआई मतलब जो तुम ये देख रहे हो, ठीक है, यूजर इंटरफेस, तुम्हारी यूआई में लिखा होगा स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। उस पर जाओगे, स्टार्ट अ फ्री ट्रायल करने के बाद तुम्हें वहां पर ऑप्शन मिलता है कि तुम एक महीने के लिए सारी सर्विसेज यूज कर सकते हो। कुछ सर्विस तुम्हें एक साल के लिए भी अवेलेबल होती है, वो बहुत मिनिमम होती है, इनका ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली यही है, तुम लोग को समझ में आया। तो वहां जाओगे, अपना एक कार्ड की तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी होती है, जिससे वो ₹2 काटता है, वो भी वापस हो जाते हैं, क्योंकि वो वैलिडेशन करना होता है उसे बैंक के साथ कि भाई हाँ ठीक है वैल्यू। तुम लोग ने कोई चीज की परचेसिंग करी होगी फ्री ट्रायल पे, तो ये सब होता है, ये कार्ड पे वैल्यूज लेते हैं, फिर ₹2 कटते हैं, फिर वो ऐसे 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 होता है, वापस आ जाता है पैसा, और तुम्हें फ्री ट्रायल के लिए वो चीज मिल जाती है, ठीक है। सेम अज्योर में वही चीज है, फ्री ट्रायल के लिए 1 महीने के लिए तुम्हें मिलेगा, तुम्हें जो चीज यूज करनी है तुम यूज कर सकते हो, जैसे यूज करनी कर सकते हो, बट बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। मतलब तुम ये नहीं कर सकते कि तुमने कहा कि मुझे 10 टीबी 15 टीबी का स्पेस चाहिए, वो नहीं प्रोवाइड करेगा तुम्हें फ्री ट्रायल। उसके लिए तुम्हें चाहिए पे एज यू गो, जो मैं कहूंगा कि बेसिक लेवल के लिए अच्छा नहीं है। पे एज यू गो मत खरीदना, ठीक है। तुम लोग को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उससे मत जाना, क्योंकि वो बहुत रिस्की चीज है, बहुत पैसा जा सकता है उसमें, ठीक है। तुम लोग को आइडिया नहीं होगा कि ये कैसे ऑपरेट करना है, ठीक। तो आई वुड सजेस्ट सब लोग एक फ्री ट्रायल ले लेना और जरूर ट्राई करना है श्योर को, कैसे एक एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे एक ब्लॉक सर्विस क्रिएट करते हैं, और कैसे एक डेटा फैक्ट्री क्रिएट करते हैं। अभी इतना सोचो, इतना करके देखो, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। तो अभी के लिए मैं इस चीज को यहाँ पे एंड करता हूँ। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पुटअप कर सकता है, ठीक है, कोई भी टाइप के क्वेश्चन हो अभी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सिद्धांत सर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो आप अभी पूछ सकते हो। हम कुछ देर के लिए आप सभी को अनम्यूट कर देते हैं, तो आपको जो भी क्वेरी हो सिद्धांत सर से आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक सेकंड में कहना है मेरे को। हाँ, तो यस, पूछो भाई, इसको जो पूछना है, कोई इशू नहीं है। Unmuted. एक एक करके एक काम करो, सबसे बढ़िया, सब लोग पहले म्यूट पे जाओ, सब लोग पहले म्यूट पे जाओ, सब लोग पहले म्यूट, ठीक है, सब लोग पहले म्यूट पे जाओ। बहुत सिंपल है, अपना क्वेश्चन टाइप करो, फिर माइक ऑन करो, मैं एक का नाम लूंगा, ठीक है। हम 5-6 क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। तुम पहले वो करो, टाइप करो कि सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैं एक नाम बोलूंगा, वो बंदा बस अपना माइक हटाना, मैं सबके क्वेश्चन करूंगा, लेकिन इससे इजी रहेगा। तो कोई पूछे कि सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, ऐसा टाइप कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ। सिद्धांत सर, कैन यू प्लीज शेयर टेस्ट लिंक? हाँ, श्योर, आई विल, या आई एम डूइंग दैट। सभी टेस्ट देंगे, क्योंकि जो 5 दिन का रिजल्ट होगा वो कल यूट्यूब पे लाइव अनाउंस होगा। तो आप सभी यूट्यूब पे रहना, ठीक है, अपडेटेड रहना टेलीग्राम पे। वहाँ पे लिंक जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप अपना रिजल्ट वहाँ पे आके देख लेना। जो भी टॉप होंगे हम उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे और उन्हें किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, और भी सारी चीजें हैं उनके लिए जो अच्छा स्कोर करते हैं। टाइमिंग बता दिया जाएगा आपको, हाँ, टेलीग्राम पे आपको बता दिया जाएगा कि टाइमिंग क्या है। किसी को कोई
विनय, मैं कह रहा था कि अब तुम टेक ओवर कर लो प्रॉपर्ली, तो ठीक है, मैं म्यूट पे जाता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पुट अप कर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी पूछ सकता है वो, कि कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी सिद्धांत सर ने सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया है। जब आप इनसे डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आपको बताना कि कैसे एज्योर अकाउंट बनाना, एक एक सर्विस को एकदम बेसिक डिटेल से वो बताएंगे। तो आपको कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। लगता है आज की ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट है, कोई क्वेरी नहीं आ रही है। लग तो रहा है, या तो अभी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट देखा नहीं होगा हमने ना, तो क्या मतलब सबके ऊपर से सर के ऊपर से तो नहीं चला गया भाई? सब लोग बता दो कम से कम चार्ट में। अगर किसी के सर के ऊपर से जा रहा तो वो भी बता दो। मैं चाहता हूँ जितने लोग प्रेजेंट है कम से कम उतने लोग एक्टिव है वो रिस्पॉन्ड करें। इससे मतलब देखिए कि उनके अंदर भी कोई एंथुसियाज्म है सीखने का। मतलब देखो, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ कि आज सीखोगे। हम लोग भी ऐसे थे कि हम लोग भी पॉइंट पे थे, स्टूडेंट ही थे, ठीक है। गुड, ओके, यस, ओके, अच्छी बात है, तुम्हें आता है तो गुड गुड। हाँ, वो होता है शिवांगी, ऐसा होता है कि कोई चीज पहली बार सीखते हो तो थोड़ा वो सर के ऊपर जाती है। इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं तुम लोग को जरूर कहूंगा कि हम आगे जाकर वीडियोस लाने वाले हैं इसके ऊपर। हम लोग इसके ऊपर और काम करेंगे अभी, और लोगों को एज्योर के बारे में, AWS के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ब्लॉकचेन, IoT और सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बाकी सर आपको विनय सर सब बता देंगे, ठीक है। तो विनय कल आप का एक मतलब इम्पोर्टेंट है। कल मैं डेवॉप्स लूंगा और थोड़े डॉकर के बारे में बताऊंगा। कल का मतलब कमाल का सेशन होने वाला है। अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट, अपने जूनियर सबको आप बोल दीजिएगा कि कल आए और डेवॉप्स के बारे में जाने की बेसिक डेवॉप्स होता क्या है। डॉकर के ऊपर मैं आपको मैजिक करके दिखाऊंगा। मतलब कल का सेशन कमाल का होगा। आप टाइम से सभी आ जाना, और फिर कल ही रिजल्ट भी अनाउंस हो गए। जो भी अच्छा स्कोर कर रहा है अपने अपने फील्ड में, अपने अपने डोमेन में, तो कल सभी आना जरूर। थैंक यू विनय सर। और स्किलाक की ओर से मैं सिद्धांत सर को भी थैंक्स कहना चाहूंगा, और विनय सर को भी, कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को भी आई वुड लाइक टू थैंक्स यू ऑल। एंड प्लीज आप लोग सर फॉर्म फिलअप करना, और कल जरूर आना, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज आप लोगों ने जो मेहनत की है, कल उसका रिजल्ट आएगा। एंड प्लस कल का सेशन भी काफी अच्छा होने वाला है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड गुड डे। And all the details will be shared with you all. किसी को कोई क्वेरी हो आप अपने जूनियर्स को बताइए, अपने बैचमेट्स को बताइए कि आए और लाइव सेशन अटेंड करें, क्योंकि कल का लास्ट डे है और सारे अटेंडेंस के बेसिस पे ही उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड होंगे। तो आप अपने जूनियर्स को बताएं, अपने सीनियर्स को बताएं, अपने बैचमेट्स को बताएं। टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आज के कल के AWS का सेशन भी अभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके सारे वीडियोज, उसके PPTs आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। सिद्धांत सर, प्लीज शेयर टेस्ट लिंक। हाँ, क्या बने अच्छे। पृथ्वी से क्या मतलब, क्या इशू है? सर जो पहले दिन सेशन हुआ था उसमें मतलब ज्वाइन नहीं कर पाए थे हम लोग, क्योंकि लिमिट हो गई तो थी। तो उसका आप क्या रिपीट होगा इंफॉर्मेशन सर? लर्निंग का प्रोसेसन हो या डेवॉप्स का? जी सर, मतलब आप लोग ने बोला था कि रिपीट होगा उसका एक सेशन। अच्छा, कल कितने लोग डेवॉप्स पढ़ना चाहते हैं? यहाँ पे पिंग कर दो पहले, मतलब कितने लोग हैं जो डेवॉप्स चाहते हैं कल पढ़े? डेवॉप्स, डॉकर।
ठीक 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 ठीक। तो आप अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा अगर कहीं पैसा है तो वो है डेवॉप्स में। ये सिद्धांत सर बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं आपको। तो हाँ, कल की विनय 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 बिल्कुल सही कह रहा है। डेवॉप्स से बहुत पैसा होता है। तुम आज के जमाने में डेवॉप्स, क्लाउड, ब्लॉकचेन, इन सब कहीं भी चले जाओ, सब में बहुत पैसा है, ठीक है। और डेवॉप्स में खासकर बहुत पैसा है। और हम बीबीडी में आएंगे तो सिर्फ ब्लॉकचेन को लेके आएंगे। ब्लॉकचेन के ऊपर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े जो एक्सपर्टीज होंगे उनको लेके आएंगे। तो आप स्किलाक से जुड़े रहिए और कल अपने जूनियर्स को, सीनियर को, सबको बोल दीजिएगा कि आए और ज्वाइन करें। कल का सेशन बहुत ही धमाकेदार होगा। इसी टाइम पे हम लोग कब दीपक आएंगे? जल्दी आएंगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर हो जाएगी। एक बार विनय सर आप लोग को सब कंडक्ट करा देंगे प्रॉपर्ली। Good afternoon, sir. I want to ask you some question about services of clouds. Can I take? या श्योर Can I ask, sir? सर मैं आपसे ये पूछता था सर, जैसे बीबीडी में इस बार सर प्लेसमेंट में मेरा रहेगा सर 32 lakhs अप्रॉक्स क्लाउड सर्विसेज में पैकेज गया था सर। तो एक्चुअली कंपनी अमेजोन ही प्लेसमेंट हायर करती है या सर जो अदर कंपनी है जो क्लाउड इंजीनियर्स या क्लाउड आर्किटेक्ट को भी हायर करती है? बहुत कंपनीज है जो, मतलब क्वेश्चन ये पूछना कि अमेजोन के अलावा ऐसी कौन सी कंपनीज है जो क्लाउड इंजीनियर्स हायर करती है। मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ देखो, तुम लोगों ने नाम नहीं सुना होगा अगर ज्यादा। ZS एसोसिएट्स का नाम सुना है किसी ने कभी सुना है ZS एसोसिएट्स? वो एक ऐसी कंपनी है जो AWS और Azure डेवलपर्स उठाती है और उनको पैकेज बहुत देती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तुम्हारी ब्लूमबर्ग है, वो बहुत ज्यादा उठाती है, ठीक है। तुम लोग को मैं एक सिंपल और एक अच्छा सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। राइट, हम लोग को भी इतना नहीं पता था जब हम लोग भी थे कॉलेजेस में। जैसे बीबीडी हो गया, ठीक है, तो वहां पर कहो कि बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनी आती तो नहीं आती, ठीक है। सिंपल एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं तुम लोग को। पहले से एक चीज इन्फॉर्म करता हूँ कि ऑफ कैंपस जितना भर सको उतना भरना, ठीक है। ऑफ कैंपस के लिए हमेशा रेडी रहना और अपने आप को उतना एक्सप्लोर करो कि तुम कोई चीज को कितना सीख सकते हो। तो मार्केट के लिए रेडी होना चाहिए तुम्हें।